নমস্কার, গুড আফটারনুন। প্রতিদিনের ন্যায় আজও আমরা উপস্থিত হয়েছি অনপ্যাসিভ দ্য ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে। তো উপস্থিত প্রত্যেক রেসপেক্টেড স্যার অ্যান্ড ম্যাম প্রত্যেককেই আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং বুক ভরা ভালোবাসা জানাই। বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম জানাই এবং একনিষ্ঠদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং ওয়েলকাম জানাই। এখনো যারা উপস্থিত হননি তাদেরকেও মোস্ট ওয়েলকাম এবং সুস্বাগতম জানাই। তো আজ 30শে মে 2024, ভারতীয় সময় 3:45 এবং বাংলাদেশ সময় 4:15 প্রতিনিয়ত অনপ্যাসিভ দ্য ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে উপস্থিত থাকি। প্রতিদিনের ন্যায় আজও আমরা আজকে এই ওয়েবিনারে উপস্থিত আছি। আজ আমরা 163তম ওয়েবিনার কমপ্লিট করতে চলেছি। আমি সুজিত পাল দমদম কলকাতা থেকে আপনাদের সঙ্গে আছি। তো অনেক কিছু আলোচনা আজকে বিভিন্ন স্যারেরা থাকবেন আলোচনায় এবং বিভিন্ন আপডেট নিয়েও আলোচনা আছে, সেই বিষয় নিয়ে শুরু থেকে শেষ অবধি থাকবেন এবং এইভাবেই একটু একটু করে এগিয়ে চলার চেষ্টা করব সবাইকে সাথে নিয়ে। তো সেই জায়গা থেকে একটু ন্যারোনেস এবং নেগেটিভ থটকে দূরে রেখে আমরা উপস্থিত থাকব এই ওয়েবিনারে। মানবতার দূত যে পারস্পরিক কল্যাণের জন্য এবং কোনো ভেদাভেদ না রেখে আমরা এই ওয়েবিনারে উপস্থিত হব। নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আমরা এই ওয়েবিনারে উপস্থিত হব। নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং ইন ফিউচার জেনারেশন যাতে উজ্জ্বল হয় তার জন্যই আমরা ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকব। তো কিছু রুল মেনে চলবো, যেমন কোনো আনইথিক্যাল আলোচনা আমরা করব না, অন্য ওয়েবিনারের আলোচনা আমরা এই ওয়েবিনারে রাখবো না এবং স্যারেদেরকে স্যার এবং ম্যামেদেরকে ম্যাম বলে সম্বোধন করব। প্রত্যেককে সম্মান দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। যখন কোনো স্যার উপস্থাপনায় থাকবেন বা ম্যাম উপস্থাপনায় থাকবেন, প্রয়োজন হলে হ্যান্ড রাইজ করব, মাইক আনমিউট করব না। ওয়েবিনারে উপস্থিত হয়ে নেগেটিভ আলোচনা বা আনইথিক্যাল আলোচনা রাখবো না। তো এই সিস্টেমগুলো একটু মেনে আমরা ওয়েবিনারে উপস্থিত হব। তো ইউটিউবে যারা দেখছেন বা শুনছেন তাদেরকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং আন্তরিক ভালোবাসা জানাই। ওয়েস্ট বেঙ্গল মঞ্চ, বেঙ্গলি কমিউনিটি, উন্মুক্ত মঞ্চ, ওপেন মঞ্চ, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরাজি 3টে ল্যাঙ্গুয়েজেই উপস্থাপনায় আসবেন প্রত্যেকেই। শুরু থেকে শেষ অবধি থেকে প্রতিনিয়ত এই ওয়েবিনারের সুশৃঙ্খল বজায় রেখে এগিয়ে থাকবো। তো সেই জন্য আমরা প্রত্যেকেই উপস্থিত থাকব এবং কিছু সিস্টেমের মধ্যে থাকব, যেমন আমরা ও কানেক্ট ওয়েবিনারে অধিষ্ঠিত থাকবো এবং বিভিন্ন আলোচনা, মনোমুগ্ধকর আলোচনা, উপস্থাপনা এবং আলোচনাগুলোকে পাথেয় করে এগিয়ে চলবো। ও কানেক্ট ওয়েবিনার ফিচার্সগুলো সম্বন্ধে জানা বোঝার চেষ্টা করব। এআই ভিভিজি বা ফটো সেট করে ব্যবহার করব, ফটো সেট করে ওয়েবিনারে উপস্থিত হব। ওইএস লগ ইন লগ আউট করব।
OES ব্যাক অফিস ফলো করব, আইডি পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখবো। আমরা আমরা জানি যে একটা নতুন ওয়েবসাইট এসেছে আজকে, গতকাল মঙ্গলবার। সেই ওয়েবসাইটটা আমরা প্রতিনিয়ত ভিজিট করব, www.onpassive.com, গুগল ক্রোম এবং ব্লগগুলি ভালো করে বুঝে নেবার চেষ্টা করব এবং ও ফাউন্ডার ব্যাক অফিস চেক করব। ও ফাউন্ডার ব্যাক অফিসই আমাদের শেষ কথা এবং সেখান থেকে সমস্ত কিছু আপডেট ভিডিও এবং প্রতিনিয়ত আমরা পেয়ে থাকি এবং সেই জায়গা থেকেই প্রতিনিয়ত আমরা আপডেট নেবার চেষ্টা করব এবং এইভাবেই নিজেকে অনপ্যাসিভের স্রোতে ভাসিয়ে রেখে এগিয়ে চলবো। তো মানবতার দূত, হিউম্যানিটিকে জাগ্রত করার দূত, ঈশ্বর প্রেরিত দূত, মহান COS স্যার একটা বিপ্লব আনতে চলেছেন, ঐতিহাসিক বিপ্লব। সেই ঐতিহাসিক বিপ্লবে আমরা সাক্ষী থাকার জন্য ভালো থাকবো এবং পরিবারের পাশে থাকবো, যেহেতু অনপ্যাসিভ দা ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ একটা পরিবার। এই সুন্দর মুহূর্তের মধ্যে আমরা আছি, এই সুন্দর মুহূর্তের মধ্যে থেকে আমরা এই ওয়েবিনারে উপস্থিত থাকছি। তো সেই জায়গা থেকে প্রতিনিয়ত সুন্দর মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে এই ঐতিহাসিক বিপ্লবের সাক্ষী থাকার জন্য আমরা সাথে থেকে এগিয়ে চলবো। মানবতার দূত, হিউম্যানিটিকে জাগ্রত করা দূত, মহান COS স্যার, ওনাকে কোটি কোটি স্যালুট জানাবো যে এইরকম একটা প্ল্যাটফর্ম ও কানেক্ট ওয়েবিনার, যেটা অডিও ভিডিও কনফারেন্স টুল, যার মাধ্যম দিয়ে সারা বিশ্বব্যাপী কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। সেই ও কানেক্ট ওয়েবিনারে উপস্থিত হয়ে আমরা যে বিশ্বব্যাপী মানুষের সঙ্গে বা ফ্রেন্ড ফাউন্ডারের সঙ্গে যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম উপহার পেয়েছি, সেই মহান COS স্যার, যিনি আমাদের অনপ্যাসিভের কান্ডারি, ওনাকে কোটি কোটি স্যালুট জানাবো। আমাকে যে এই ব্লেজার, আমাকে যে প্ল্যাটফর্মটা উপহার দিয়েছেন, আমার ব্লেজার, ওনাকে স্যালুট জানাবো আজকের ওয়েবিনারে উপস্থিত মেন্টর, অর্গানাইজার এবং পার্টিসিপেট প্যানেলের রেসপেক্টেড স্যার অ্যান্ড ম্যাম, প্রত্যেককেই স্যালুট জানাবো। আপনাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি এই ওয়েবিনারের শোভা বাড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস নিয়ে থাকছি। সেই জায়গা থেকে আমাদের যে অর্গানাইজার রয়েছেন, তো ওনাদেরকে না স্যালুট জানালে তো অনেক ছোট হয়ে যাবে। তো সেই জায়গা থেকে আমাদের অর্গানাইজাররা রয়েছেন মিস্টার সঞ্জু কর্মকার স্যার এবং মিস্টার গৌতম পাল স্যার, যেনারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই অনপ্যাসিভ দা ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ তৈরি করে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিয়েছেন, যেখানে সারা বিশ্বের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং ওয়েবিনারের মধ্যে উপস্থিত হতে পেরেছি। তো ওনাদেরকে আমার অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং কোটি কোটি স্যালুট। সেই জায়গা থেকে স্যালুট জানাবো আর একটা বিশিষ্ট স্যার, যিনি এগিয়ে এসে এই ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের কার্যকলাপকে আরো ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছেন, মিস্টার রথিন চক্রবর্তী স্যার। ওনাকেও আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাই, যেভাবে আপনি এগিয়ে এসে এই ক্রিয়াকলাপকে আরো উঁচু থেকে উঁচুতর জায়গায় কিভাবে পৌঁছানো যায়, অনপ্যাসিভ দা ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ কিভাবে আরো উঁচু থেকে উঁচুতর জায়গায় পৌঁছানো যায়, সেই প্রয়াস নিয়ে রতিন স্যার এগিয়ে চলেছেন। ওনাকে কুর্নিশ জানাই, স্যালুট জানাই অনপ্যাসিভ দা ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের পক্ষ থেকে। তো সেই জায়গা থেকে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উপস্থাপনা আপনাদের মধ্যে শেয়ার করলাম। প্রত্যেকেই শুরু থেকে শেষ অবধি থাকবেন। তো আমরা আজকে সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আলোচনায় থাকব। আমরা জানি সেই টপিকটা থ্রট প্রসেস অ্যান্ড অনপ্যাসিভ 360 আপডেট। এই দুটো সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আলোচনায় থাকব। তো সেই জায়গা থেকে এই সাবজেক্টটা থ্রট প্রসেস এবং অনপ্যাসিভ 360 আপডেট। আমরা জানি যে গতকাল রাত্রি 9:30 ভারতীয় সময় এবং বাংলাদেশ সময় রাত্রি 10টার সময় প্রথম পার্ট ও ফাউন্ডার ব্যাক অফিসে আমরা পেয়েছিলাম। সেখান থেকে
একটা 360 আপডেট আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। সো সেখানে ক্লিক করে রেড স্যার, মাটি স্যার অ্যান্ড ক্রিস স্যারকে আমরা পেয়েছিলাম এবং সেখান থেকে সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা এবং স্যারেরা রেখেছিলেন। তারপরে দ্বিতীয় পার্ট আর একটা এসেছিল, যেটা হচ্ছে রাত্রি ভারতীয় সময় রাত্রি 11:30টায় এবং বাংলাদেশ টাইম রাত্রি 12টায়। সেই জায়গা থেকে আমরা সেখানে এস স্যারকে পেয়েছিলাম, জুলি স্যারকে পেয়েছিলাম এবং সুজি স্যারকে পেয়েছিলাম, মাটি স্যার, রেড স্যার অ্যান্ড ক্রিস স্যার ওনাদেরকেও পেয়েছিলাম। সেখান থেকে একটু আপডেট জানা বোঝার চেষ্টা করেছি এবং সেখান থেকে হিউম্যানিটিকে আপলিফটিং করার বিষয় নিয়ে এস স্যার উপস্থাপনা এবং একটু আপডেট রেখেছিলেন এবং কঠিন সময়ের মধ্যে এস স্যার যাচ্ছেন সে বিষয়ে একটু স্যার আলোচনা রেখেছিলেন এবং এস স্যার আরেকটু বলেছিলেন আই অ্যাম ইনচার্জ, আই অ্যাম ইনচার্জ, এই বিষয়টা নিয়ে স্যার কিন্তু বারবার উপস্থাপনা করেছিলেন। কেন তিনি ইনচার্জ সেই বিষয়টা কঠিন সময়ের মধ্যে যাওয়ার জন্য স্যার এই ইনচার্জের কথা বিষয়টা নিয়ে বারবার ওখানে এসেছিলেন এবং অনপ্যাসিভ যে স্রোতে এগিয়ে চলেছে একটার পর একটা লক্ষ্য পূরণ করে মহা আকাশে ঊর্ধ্ব গগনে অনপ্যাসিভ এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে থাকার পেছনে যে স্তম্ভের উপরে এগিয়ে চলেছে সেই স্তম্ভের উপরেই আমরা ছাদে থাকবো, অনপ্যাসিভের স্রোতে থাকবো এবং সম্পূর্ণ আলাদা প্ল্যাটফর্ম একটা তৈরি করে দিচ্ছেন, যেটা অন্যান্য কোম্পানির তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা ভিন্ন। সেই জায়গা থেকে আমরা 14 লক্ষ ফ্রেন্ড ফাউন্ডার যে আছি সেনা সৈনিক এস স্যারের ওনার মিশন ভিশনের সাথে থাকবো, এস স্যারের ক্রিয়াকলাপের সাথে থাকবো, ওনার নেগেটিভ থটকে দূরে রেখে ওনার হাতের মুঠিকে শক্ত করব। আমরা সেনা সৈনিক হয়ে ওনার পাশে থাকবো, ওনার মিশন ক্রিয়াকলাপকে সার্থকের পথে এগিয়ে নিয়ে যাব। উনি এই প্ল্যাটফর্মটা উপহার দিয়েছেন, এর সাথে সাথে আমাদেরকে আপলিফটিং হিউম্যানিটির সাথে রেখেছেন এবং যে এইভাবেই আমরা একটু একটু করে নলেজ নিয়ে এগিয়ে চলবো। তো মোস্ট ওয়েলকাম আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট সঞ্জু স্যার, মোস্ট ওয়েলকাম। আপনি আসুন, আপনার উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে আজকেরটা সুন্দরভাবে এগিয়ে যাব। মোস্ট ওয়েলকাম সঞ্জু কর্মকার স্যার। ইয়েস সঞ্জু স্যার অ্যাভেলেবেল আছেন? हेलो 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 ইয়েস রাজ দামোদর জি। ইয়েস স্যার স্টে টিউন স্যার। ইয়েস স্যার সঞ্জু স্যার। यस नो प्रॉब्लम। तो बामाचरण सर जी, तो हमारा साथ सब रहिए। तो हमारा चीफ गेस्ट कैप्टन हेड मिस्टर राज दामोदर सर प्रेजेंट है, तो वेलकम करता हूँ। कम ऑन मिस्टर राज दामोदर सर, कैप्टन हेड और OP 360 अपडेट ऑन थॉट प्रोसेस लेके अपडेट आलोकपात रहेंगे। तो मोस्ट वेलकम कैप्टन हेड मिस्टर राज दामोदर सर, सुस्वागतम। वेलकम सर, माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ राज दामोदर जी। ओके मोस्ट वेलकम सर। यस वेलकम सर। ओके डियर ओके थैंक यू सो मच मिस्टर सुजीत पाल जी, ग्रेट इंटरनेशनल लीडर, you are just firing inviting me. Hey, very good evening, ladies and gentlemen, the galaxy of intellectual. Today you'll be surprised to get a top class knowledge about a thought process, okay? And I will be updating you about on passive massive the fasting the trailing update, which is a really boom boom boom. We are going to dance, my dear friends. Dancing factor is coming down passive. First of all, hats off each and everyone. सभी को नमस्कार. Okay, my dear friends, thought process. वाह, थॉट प्रोसेस जबरदस्त सेशन होने वाला है. आप बस बने रहिए. ओके, आपकी जिंदगी में एक मेंटल क्रिएशन जो होता है ना, ठीक है, जो सबकॉन्शियस माइंड सेट होता है, कोई भी थॉट वो आपकी एक ताकत होती है, एक आपकी एसेट होती है, आपकी जिंदगी एक पूंजी होती है. पैसे से पूंजी नहीं है जी, आपका विचार, आपका थॉट बहुत बड़ी पूंजी होती है. जो ब्रेन की एक्टिविटी चलता है, जो न्यूरॉन काम करता है, जो सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, आपको मालूम है
ये पूरा बॉडी अपने आप में क्या है, कंप्लीट पैकेज है। भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, एक कंप्लीट पैकेज दे के दिया है। सुनने के लिए कान दिया है, आपको सूंघने के लिए नोज दिया है, आंख दिया है देखने के लिए, ब्रेन दिया है सोचने समझने के लिए, दिल भी दिया है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंडसेट भी है। अब सवाल ये है कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे बड़ी बेसिक चीज क्या है कि व्हाट आर थॉट प्रोसेस, समझना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक कॉग्निटिव एक्टिविटी, इट इज अ मेंटल कैपेसिटी टू कंप्लीट एंड अंडरस्टैंड सर्टेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप अभी उतार चढ़ाव से दौड़ रहे हैं ना, यार कब बारिश हो जाता, डॉलर की बारिश हो जाता, मैं तो रेस्टोरेंट में चला जाता, तुरंत टेनिस में जाता, तुरंत एक घर का शानदार महल बनाता। अभी छुट्टी का समय है, समर का सीजन है यार, मालदीव जाता, अभी बीच में स्नान करता, स्विट्जरलैंड चले जाते, पेरिस चले जाते, फाइनेंशियल बूम हो जाता, मैं भी करोड़पति बन जाता। इस क्योंकि आपकी चाहत तो है। ये जो थॉट प्रोसेस एकदम कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, आप एक्साइटेड होते हैं कब सीओ आएंगे, जब बारिश कर दे हमारे अकाउंट में, है ना। तो ये एक जो मेंटल क्रिएशन होता है बॉस, आप, मैं मानता हूं आप जुझते हैं हमेशा। आईक्यू भी काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड से। क्यों? आपने कुछ इमेजिनेशन किया है ना, सपने देखे हैं जो तरंग जैसा, यू वांट टू फुलफिल ऑल अ टारगेट। एक विजुलाइजेशन कर रहे हैं कि अगला, आज के 5 साल के बाद, 2 साल के बाद मेरे पास करोड़ों के मालिक होंगे यार, दुनिया देखिए यार, मेरी भी सबाब होंगे, दौलत और शोहरत मिलेंगे। ये जो थिंकिंग है ना, ये थॉट प्रोसेस में आपका शामिल है। मेंटल क्रिएशन आपने बना लिया है, पहले दिन से आपको ये मेंटल क्रिएशन बना दिया गया है कि आप फाउंडिंग मेंबर हैं, यू आर गोइंग टू बी नेक्स्ट बिलियनियर्स। लेकिन वो बिलियनियर्स बनने के लिए बिलियनियर्स आपका माइंडसेट भी होना चाहिए। सिर्फ जबान निकालने से नहीं होता है बॉस, वो थॉट प्रोसेस आपके दिलो दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए, वो है आप में, वो चीजें है। क्योंकि थॉट प्रोसेस आपको जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्वर, याद कीजिएगा, कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं, कैसे सॉल्यूशन देते हैं, बहुत मदद करता है। थॉट प्रोसेस क्या है? इट इज टाइप ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ योर मेंटल कैपेसिटी टू कंप्लीट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ। अब सवाल यह है कि व्हाई आर थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट। ये थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है? Actually, thought process help to navigate throughout the world। आपको जिंदगी का ये पूरे ब्रह्मांड में एक रास्ता दिखाता है जी। आप एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में कैसे इंटरेक्शन करते हैं, सोसाइटी से कैसे इंटरेक्शन करते हैं। ओके, आप आप आइसोलेट नहीं हो सकते हैं ना। डिफाइनिंग हमेशा याद रखिएगा थॉट प्रोसेस का कि आपके अंदर कितना कनेक्शन है, कम्युनिकेशन कितना टॉप क्लास का है, आप कोई चीजों को, कोई भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे इंगेज रहते हैं। इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, इंगेजमेंट, ये थॉट प्रोसेस ही बनते हैं। ठीक है, अभी सेशन चल रहा है, एक थॉट प्रोसेस है ना, एक बैक ऑफिस का जो टॉप क्लास का अपडेट अभी आया है, हमें इंटरेक्ट होना है, जानना है, एक्साइटमेंट है, ये थॉट प्रोसेस से बन रहा है बॉस। तो जिंदगी में थॉट प्रोसेस आपको जिंदा रखती है। जब इंसान जो है ना, जब अपने में समाहित हो जाता है ना, आइसोलेट हो जाता है दुनिया से, इंटरेक्शन नहीं होता है, तो समझिए जिंदगी की सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। इसीलिए ये वर्ल्ड जो है ना, ग्लोबल विलेज है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब सवाल ये है, टाइप्स ऑफ थॉट प्रोसेस, उसकी बात करता हूँ। एक होता है एब्डक्टिव रीजनिंग। इसमें क्या होता है कि आप जो वर्ल्ड में जो देखते हैं ना, व्हाट यू सी, यू मेक अ थ्योरी। अब मान ले कि एक सिंपल है, यदि स्काई ब्लू है, सिंपल है, माने स्काई ब्लू है, इसका मीनिंग क्या है? यस, क्लीन स्मार्ट स्काई दिख रहा है। यदि स्काई ग्रीन है, इसका मीनिंग क्या है? टोर्नेडो आने वाला है। ठीक है, आपने देखा होगा। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि आप जो देखते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, अनुभव विजुलाइजेशन करते हैं। जब आपको माइकल विलियम्स सर ने बोला था कि फाइनेंशियल सुनामी आ रही है, ये फाइनेंशियल सुनामी, विजुलाइजेशन हुआ, वाह फाइनेंशियल सुनामी। सुनामी तो एक डिस्ट्रप्टिव आती है, पूरे विध्वंसक आती है,
इसका अर्थ है फाइनेंशियल इतनी बड़ी अमाउंट में आने वाला है, यहाँ पर रोबस्ट होने वाला है, डॉलर की बारिश, ठीक है। ये एब्डक्टिव रीजनिंग आती है, एब्डक्टिव रीजनिंग ये आपके ब्रेन में बन जाती है। एब्स्ट्रैक्शन, सेकेंड होता है एब्स्ट्रैक्शन। जैसे आपका बच्चा है, ठीक है, आपको प्यार आता है ना अपने बच्चों पर, आपका बच्चा आईएएस का टॉपर कर गया, आईआईटी का टॉपर कर गया, ही बिकम द आईएएस कलेक्टर, ही टॉप इन आईआईटी, एम्स, आईबीएम, कैट के एग्जाम 100 परसेंटाइल ला लिया, आईएम का टॉपर है। अब कितना सक्सेस, बहुत प्यार भर जाता है ना बच्चे के लिए। तो ये अब्स्ट्रैक्शन होता है, एक आइडिया जनरेट होता है आपके माइंड में, ठीक है। जो इमोशंस आता है, फीलिंग आता है, याद कीजिएगा, एक थॉट प्रोसेस है। जब आपका बच्चा फेल हो जाता है, अब मेहनत करता फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसके प्रति यार एक नहीं होता निराशा फैक्टर, सैडनेस आती है। तो ये जो इमोशन कभी हैट, कभी फियर, कभी सैड आ जाते हैं। जब सीईओ ने बोल दिया कि आपको ठीक है वो पैसा मिलने वाला है, और सपोज वो डेट फेल हो जाता है, तो कभी सैड हो जाते हैं ना। तो ये थॉट प्रोसेस आपको बॉस, ये एब्स्ट्रैक्ट थॉट प्रोसेस है। कभी आप खुश होते हैं, कभी निराश होते हैं, लेकिन जिंदगी में हमेशा खुश रहने की आदत डालना चाहिए। जो मिलीनियम माइंडसेट के लोग होते हैं, उनकी जिंदगी में भी जो बिलियनियर है, उनके अंदर वो परेशानियां आती हैं, चैलेंज आएगी, लेकिन आपकी जो इमोशन है वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। वो ज्यादा एक्सप्रेसिव दिखना नहीं चाहिए आपको, और आपको कंट्रोल करने का एक कैपेसिटी होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। क्योंकि जो हैप्पीएस्ट लोग हैं जिंदगी में, जो सुपर सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी जिंदगी का एक ही तरीका है, वो क्या करते हैं, इमोशन को हल्का सा, यदि टॉप क्लास का सक्सेस भी मिल गया, इमोशन को स्टेबल करते हैं, ठीक है। यदि डाउन भी जा रहा है तब भी हर सिचुएशन में आपको अपने को संभाल के रखना है, ये बहुत बड़ी चीज है। और जो आज देखिए लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट की फौज है, लोग इतनी सुसाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं है। एक पल के लिए इमोशन डिप्रेशन हो जाते हैं और जिंदगी को ढो डालते हैं, क्योंकि सुसाइड कर लेते हैं। तो सवाल ये है, थॉट जो प्रोसेस है कि आपको हमेशा अपने इमोशन को कंट्रोल रखना है, रेगुलेट करना है, हार्मोनाइज करना है बॉस। तभी आप जो है ना एक स्प्रिंग का सिस्टम बनाना है आपके अंदर, एक गुब्बारा, एक बसंत आपके दिल के अंदर होना चाहिए, ताकि मैं अपने, ठीक है, सिचुएशन को हैंडल कर सकूं। नेक्स्ट वन, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। एनालिटिकल रीजनिंग, यस। अब सवाल ये है, एक थॉट प्रोसेस ये भी जाना चाहिए ऑन पास से। देखिए दुनिया में 99% कंपनियां माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं जी, लेकिन पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। एक साल मार्केट में रहते हैं, पूरे मार्केट से अरबों खरबों रुपया लेते हैं और परिंदे जैसे उड़ जाते हैं। आप पकड़ते रहो भाई, खोजते रहो, कहाँ भागा रे कंपनी रे, अरे लेके भाग गया पैसा। आपने देखा होगा ये लेके, ऐसे बहुत सारी 99% बता दे रहा हूँ, बर्बाद हो जाते हैं। घर का सोना बेचकर पैसा लगा दिया, लालच में जमीन बेचकर डाल दिया पैसा। आप समझिए ये हालात कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने कोई बोला, मन में लालच आया, भाई एक दिन में करोड़पति, इतना डाल दो, इतना एक साल में करोड़पति बना देगा। लेकिन आपने सोचा नहीं, आपने किसी के लालच में चले गए। आपने थॉट प्रोसेस को क्या करना चाहिए था, आपको हमेशा कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, आपको एनालिटिकल रीजनिंग करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड खोजते हैं, क्या लाइसेंस है, क्या उसके पास लीगल चीजें है, क्या अटॉर्नी है, यदि पैसा फंसेगा तो क्या गवर्नमेंट उसको वापस कर सकती है, क्या उसका बिजनेस प्लान है, क्या उसका फाउंडेशन है भाई। आप समझिए, आज वन पैसे में जो वक्त लग रहा है ना, इतनी टॉप क्लास का फाउंडेशन दिया जा रहा है, एक एक फाउंडेशन की नींव को बनाया जा रहा है, मजबूत बनाया जा रहा है, स्टील बॉडी जैसा जी। तभी तो बुर्ज खलीफा से भी बहुत बड़ी इमारत बनाई जा रही है उन पास में। ओएस की बात करते हो, डोमेन की बात करते हो, वेरीफाई की बात करते हैं, आप मल्टीपल डाटा सेंटर की बात करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, एआई लैब है, मशीन लर्निंग लैब है, बिग डाटा हमारे पास है, ग्लोबल टीम है, टॉप क्लास का एआई डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी काम कर रही है, टॉप क्लास का हमारा सीईओ है, रियल फाउंडिंग मेंबर, ये सब क्या है, ये सभी बैकबोन है जी, पिलर्स हैं। आप भी एक पिलर है, महानतम पिलर है। आप समझिए बॉस, ये एनालिटिक रीजनिंग करना है,
रैशनल थिंकिंग एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, उन पास कोई डार्क बिलीफ नहीं है, दुनिया के लिए एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, आईआईटी का बॉस होने वाला है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें मालूम है कि ऑटोमेशन से चलेगा, ट्रैफिक आएगी, रेसिडुअल इनकम बनेगा, कैटमोइज में आपको बिजनेस, आपका वेबसाइट बनाया जा रहा है, आपका डोमेन बनाया जा रहा है, आपका होस्टिंग है, हर चीज आपके घर का पूरा बिजनेस को कैसे एम्पावर करना है, पूरा बने बनाया चीज दिया जा रहा है, उसके बिहाफ पे उन पैसिव काम करने वाली है। ये एनालिटिक रीजनिंग है, ये नॉलेज है बॉस, ये नॉलेज आपके पास है तो आप शानदार है। ये थॉट प्रोसेस होता है, इस थॉट प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है बैकवर्ड इंडक्शन। देखिए कोई भी सिचुएशन हो आपके पास, ठीक है, कोई भी आपके पास राज दामोदर जी आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट। ओके यस, ओके थैंक ओके, यू। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ओके ओके, ये यस बैकवर्ड यस यस। इंडक्शन है बॉस, एक कॉग्निटिव बेसिस होता है। कॉग्निटिव में क्या होता है, आपको पैटर्न ऑफ थॉट को देखना है, ठीक है, जो डिसीजन लेते हैं वो आपको हमेशा ब्रोडर पर्सपेक्टिव में सोचना है। ब्रोडर, आप पार्ट्स में मत सोचिए बॉस, जब चीजें पार्ट्स में सोचते हैं ना डिवाइड करके तो नैरो थॉट बन जाती है, लेकिन ऑन पैसिव को एक कंप्लीट सीन से देखना है, एक कॉग्निटिव बेसिस में देखना है, ये बहुत बड़ी चीज है आपको। नेक्स्ट कोल्ड लॉजिक, ये भी एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसीजर होता है आपको। आपकी थिंकिंग कैसा है, जैसे आप कोई एक महान मिशन में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, आपके बहुत बड़ी टीम है, आज सीईओ को 1.4 मिलियन फाउंडिंग मेंबर को हैंडल करना है, पूरा प्लानेट को रिसेव करने की बात करते हैं। अब क्या है, उनके अंदर एक लॉजिकल पावर है ना जी, क्योंकि पूरे टीम को यहाँ पर एक फाइनेंशियल फ्रीडम देना है, एक जबरदस्त, ठीक है, तो एक सीईओ को एम्प्लॉय की हर फीलिंग को एड्रेस भी करना है, टॉप क्लास का फैसिलिटी भी देना है, टाइम पर सैलरी भी देना है, मॉनिटरिंग भी करना है, समझिएगा। और हमारा जो पेटेंट है, जो हमारा इनोवेशन है, वो कंपनी के अंदर ही रहना चाहिए, बाहर कोई लीक नहीं करे, पूरी चीजों को कंट्रोल करना है। आप समझिए इस समय क्या है कि जो कोल्ड लॉजिक थिंकिंग बोलती है कि आपको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कि यू हैव टू इग्नोर द ह्यूमन फैक्टर सच इमोशन और कॉन्सिक्वेंसेज। इसीलिए सीईओ ने, जिसने धोखा दिया उनको फिल्टर कर दिया। आप एक महान सिस्टम में, जो सिस्टम में फिट है वो हिट है, जो सिस्टम में फिट नहीं है वो अनफिट है, मैंने बाहर गया। तो कोल्ड लॉजिक, ये परसेप्शन को ध्यान में देना पड़ता है, यदि आपको कार्रवाई भी करना पड़ता है, कार्रवाई करते हैं, क्यों? क्योंकि आप सिस्टम बना रहे हैं पूरी मानवता के लिए। एक बंदा गलत कर रहा है, उसको हम सिस्टम से बाहर कर देंगे, तो ये कोल्ड लॉजिक थिंकिंग होता है। कंसेप्चुअल थिंकिंग, आपको जो थॉट प्रोसेस बनता है, इसमें क्या होता है कि आपको कोई पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है, कोई भी चीजों को मेरा स्पष्ट मानना है। जैसे आप कोई कॉल नंबर होता है, जो हिंट्स मिलते हैं आपको कॉन्सेप्चुअल बनाने में, ठीक है, कोई मैथ्स का सॉल्यूशन करते हैं या कोई अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए कोई चीज का। कंजेक्चर, ये आपको थिंकिंग है, ये इसमें क्या है, आप गेसिंग करते हैं कोई थ्योरी देने के पहले, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि आज, अभी देखिए सिंपल है, जब ये मामला फंसा ना मर्चेंट के पास, तो लोगों ने बहुत सारा थॉट प्रोसीजर आने लगा आपके दिमाग में, क्या बात है यार, सीईओ ने क्यों रोक दिया भाई? तो किस, जो लीगल थे, जो टेक्निकल थे, वो समझ से लीगल है यार, ये मर्चेंट ने यहाँ पर बंच ऑफ क्रुक्स किया है, बेईमानी किया है, पैसा फंस गया, ठीक है, सीईओ ने बोला भी था। तो कुछ लोगों ने क्या बोला, अरे यार सीईओ ने क्रिप्टो करेंसी में डाल दिया, पूरा पैसा आया। तो समझिए अलग अलग माइंडसेट चल रहा था, लेकिन रियल क्या था? रियल यही था कि आपके अंदर बहुत सारा इमोशन आ रहा है, ठीक है, बिना चीजों को समझे हुए। लेकिन रियल क्या था कि वास्तव में पैसा होल्ड में चला गया था, क्योंकि इतना वॉल्यूम आया, अब मर्चेंट ने संभाल नहीं पाया, और उसने फिर क्या कर दिया, बेईमानी कर दिया। उसको हमने लीगल डिपार्टमेंट अटॉर्नी के द्वारा टॉप क्लास का अपना डॉक्यूमेंटेशन किया, लॉयर को बदला और सॉल्यूशन निकाला। तो ये आपको कंजेक्चर थिंकिंग होता है कि प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करते हैं बॉस, ये बहुत बड़ी चीज है। कॉन्टेम्पलेशन थिंकिंग, इसमें क्या आपको है, जो आपको थॉट प्रोसेस आता है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ा एक
प्रोसीजर होता है आपके माइंडसेट का, थॉट प्रोसीजर का, जिसको आप लॉजिकल और करेक्ट आंसर देते हैं, प्री डिटरमिन सेट ऑफ स्टेप लेते हैं। जैसे कोई प्रॉब्लम है एक्सक्यूज मी, आपकी जिंदगी में, एक्सक्यूज मी, आपने स्टेप बाय राज जी, स्टेप उसको सॉल्व करना है। एक्सक्यूज मी, সুনীল यस মন্ডল यस স্যার, সুনীল মন্ডল স্যার, আপনার আনমিউট করে নিন। Yes, মিউট করে রাখুন। স্যার কথা বলছেন, অতএব মিউট করে রাখুন। আপনি এখন আনমিউট হবেন না, ওকে? সুনীল বর্মন স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সুনীল বর্মন স্যার মিউট করে নিন। সুনীল মন্ডল স্যার, ओके, थैंक यू। यस यस, थैंक यू आप सर। कर सकते हैं इनको, आप म्यूट कर दीजिए ना, आप भी कर सकते हैं। होस्ट कैन म्यूट। ओके, थैंक यू सो मच। एक कन्वर्जन थिंकिंग का मीनिंग क्या है, आपके थॉट प्रोसीजर में क्या होता है कि आप प्री डिटरमिन स्टेप है उसको फॉलो करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। यदि आपको मैथ्स का कोई कैलकुलेशन दे दिया है, तो एक स्टेप है ना, 2 + 2 डिवाइड बाई 2, एक सिंपल है। एक देखिए थॉट प्रोसेस कैसे बनता है, 2 + 2 डिवाइड बाई 2। जिनको मैथ्स का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं, इसका आंसर क्या बोलेंगे, 2। लेकिन जिनको नॉलेज है, तो यहाँ पर क्या बोर्ड मास का इस्तेमाल करेंगे। 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 3। पहले डिवाइड करेंगे, प्लस फिर 1, 2 + 1 3। ये आपको बॉस एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होता है, माने आपको प्री डिटरमिन सेट ऑफ फार्मूला है और आपको सॉल्यूशन निकालना है। अब सिंपल समझिए, यदि आपके घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, मान लीजिए, ठीक है, आपके घर में वित्तीय समस्या हो रही है, तो सॉल्यूशन क्या है, आप निकालेंगे ना। खाने वाले कितने हैं, आप देखिए 5 फैमिली है। कमाने वाले कितने हैं, एक्टिव कितने हैं। यदि एक बंदा है पूरा प्रेशर लिया हुआ है, तो वो भी सही नहीं है, तो अगले को भी एक्टिव कर सकते हैं। तो आपके पास सॉल्यूशन प्री डिटरमिन स्टेप आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, बहुत सारे लॉजिक के हिसाब से जो सॉल्यूशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये बहुत बड़ी चीज है। एक होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसमें क्या है, आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग कि आपको बॉस बहुत सारा सॉल्यूशन है, लेकिन अब कोई भी प्रॉब्लम का अल्टरनेटिव बहुत सारा एड्रेस करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ, लेकिन बेस्ट चॉइस क्या है। आज मान ले मैंने एक सवाल किया, मेरे पास गौतम जी हैं, सुजीत जी हैं, बामाचरण जी हैं, संजू जी हैं। मैंने बोला एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आज ऑन पैसिव हाई इंटरनेशनल ग्रुप के इस महान मंच को कैसे प्रमोट करेंगे। फिर 5 चारों के अपने अपने आइडिया होगा, एक सॉल्यूशन देंगे सिंपल, लेकिन जो बेस्ट सॉल्यूशन होगा चारों में जो सबसे फिट क्या है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये काम करता है बॉस। ये आपको एक डाइवर्जेंट थिंकिंग, गेट अ पॉइंट, ये बहुत बड़ी चीज है। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, इसमें क्या है, आपको आपको इम्पॉसिबल टास्क को जो है ना पॉन्डरिंग करते हैं। याद कीजिएगा, आज तक दुनिया में कुछ हुआ ही नहीं है, उस चीज को पॉन्डर करते हैं। काउंटर फैक्चुअल, जैसे आज तक पैसिव जैसे दुनिया की महान सिस्टम बनाई नहीं है। किसी ने सोचा था कोई इतना बड़ा महान सिस्टम बना देगा आईआईटी का। गूगल का मोनोपोली है जी, फेसबुक का मोनोपोली है, इंस्टाग्राम का मोनोपोली है, स्पेस एक्स का मोनोपोली है, आईबीएम का मोनोपोली है, पूरे इंटरनेट के। लेकिन किसी ने सोचा था कि इनकी मोनोपोली को पूरा ब्रेक करके चकनाचूर करके इतना वर्ल्ड एक ऐसी आईटी का बॉस बन जाएगा। बिल्कुल नहीं। इम्पॉसिबल टास्क को जो पॉसिबल करते हैं ना बॉस, दिस इज कॉल्ड काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर कर रहे हैं, डायरेक्ट काउंटर कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल मार्केट को, जो है जहां बेईमानी है, करप्शन है, स्वार्थी पे भरी हुई है, पूरा कंज्यूमर है, ग्लोबलाइज है जी। लेकिन आम आदमी के कोई जगह नहीं है, वो लूटता है, सिर्फ लूटने का जो बिजनेस है, लेकिन उन पास से पूरा मानवता के लिए एक चिंगारी बनकर आया है, बिल्डअप करने का। तो एक काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग का कि आप जो ट्रेडिशन है मैं उसको बदल के रखूंगा। कैसे बदलूंगा, इम्पॉसिबल टास्क को बदलूंगा, क्योंकि उन पासिव एक बिजनेस ही नहीं है बॉस, जिंदगी जीने का एक कंप्लीट पार्ट होने वाला है, एक लाइफस्टाइल होने वाला है, एक आपके थिंकिंग से बियॉन्ड है, क्योंकि पूरी मानवता इसमें समाहित होने वाली है। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, थॉट प्रोसेस से बनती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ थॉट प्रोसेस को बिंदास रखिए, पॉजिटिव रखिए, क्रिएटिव रखिए। अब क्रिएटिव में क्या होता है, आप इन्वेंट करते हैं, यूनिक थॉट को लेकर आते हैं, यूनिक थॉट को लेकर। यस, एक स्किल है आपकी जिंदगी में कि आप कोई ग्राफिक डिजाइन करते हैं। जैसे अभी देखिए कितना आपने शानदार काम करे, यूट्यूब में डाल रहे हैं ना, पहले नहीं डाल रहे थे, यूट्यूब में डाल रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर कला है ना, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ नहीं होना चाहिए। आप देखते होंगे जो म्यूजिक वाले होते हैं
या आर्किटेक्चर होते हैं या फिल्म आर्टिस्ट होते हैं, कितनी क्रिएटिविटी आते हैं, लेकर आते हैं। तो बिजनेस में भी क्रिएटिविटी होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए। आज हमारा बिजनेस में क्या है? इनोवेशन है बॉस। एआई क्या है? इनोवेशन है। एआई लैब क्या है? इनोवेशन है। मशीन लर्निंग लैब की डिस्ट्रप्टिव प्रोडक्ट बना रहे हैं, टॉप क्लास ग्राउंड ब्रेकिंग फ्यूचर। वो आप वो करेक्ट में महसूस कर सकते हैं। नोवाज एआई कंसलेशन, अभी समझिए मैं स्पीच दे रहा हूँ, आउटसाइड में कोई आवाज आ रहा है, सिर्फ मेरी आवाज आएगी, वो सभी आवाज को फिल्टर कर लेगा। नोवाज एआई कंसलेशन बहुत बड़ी चीज है, जेनरेटिव एआई के द्वारा टॉप क्लास से काम कर रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है, एक क्रिएटिविटी हर समय आपको एक नई बुलंदी पर ले जाता है, नई सोच पर ले जाता है, ठीक है। क्रिएटिविटी थिंकिंग होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग। यस, आपको कोई ओपिनियन बनाने से पहले, जजमेंट लेने से पहले क्रिटिकल एस्पेक्ट भी देना पड़ता है बॉस। कोई जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, आपने देखा होगा, उनके थॉट प्रोसेस होता है, ठीक है। वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर सोचने से पहले रूल क्या होता है, रेगुलेशन क्या है, पहले संविधान को लेकर बैठे, नियम क्या है, और नियम के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। वहां पर इमोशन नहीं काम करता, वहां लॉजिकल रैशनल माइंडसेट काम करता है। दोनों पक्ष देखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग माने आपको आलोचनात्मक समालोचक थिंकिंग रखना है, दोनों पक्ष को देखते हुए बॉस। जैसे हमारे पास ऑन पैसिव का प्रोडक्ट आया ओ कनेक्ट, ठीक है। तो ओ कनेक्ट का बहुत सारी टॉप क्लास का फीचर है, लेकिन कुछ आपको ऐसा लगता है और भी फीचर होना चाहिए इसके अंदर, और भी क्वालिटी होना चाहिए। तो हम सीईओ का एड्रेस, पहले स्पीकर का जो अटेंडी थे, उनको बहुत डाटा कंज्यूम हो रहा था, बफरिंग हो रहा था। हमने सीईओ को बताया, एड्रेस किए ना जी, और अटेंडी के पास स्पीकर बनने का मौका नहीं था, लेकिन अभी बनने का मौका है, स्पीकर बन सकता है बॉस। ये क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है कि आपने चीजों को, आपको लगता है सुधार की गुंजाइश है, हम करेंगे। इसलिए कोई भी ओपिनियन, क्रिटिक और जजमेंट लेने से पहले आपको एक प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों पक्ष को देखना पड़ता है, ठीक है। और जो हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग होता है, वो इफेक्टिवनेस लाता है, इम्पैक्ट करता है न्यू प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है बॉस। डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस याद कीजिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो थॉट प्रोसीजर होता है, आपको एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड योर ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर्स। याद कीजिएगा, सेल्स मार्केटिंग में आप यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जी। ऑन पैसिव का पूरा बिजनेस किस पर डिपेंड है? वॉल्यूम ऑफ सेल पर। जितना बड़ा सेल उतना बड़ा रेवेन्यू आने वाला है। तो आपके अंदर अपने इमोशन को समझना और दूसरे के इमोशन को समझना, ये बहुत बड़ा आर्ट होता है, मास्टरी होता है। इंटरनेट की दुनिया में आपके अंदर, सेल्स मार्केटिंग की दुनिया में, याद कर लीजिएगा, ये दिस इज आर्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है। आप कितने बड़े धुरंधर है, दिमाग से कितना बड़ा तेज है, लेकिन इमोशनल स्टेबल नहीं है। एक बंदा आईएएस है, आपको सिंपल बता दे रहा हूँ, एक बंदा आईएएस बनता है, टॉप कर गया, बहुत पढ़ाकू था, ठीक है, दिमाग काम कर गया और टॉप कर गया, लेकिन जब वो रियल फील्ड में जाता है, जब वो पब्लिक की सर्विस नहीं कर पाता है, जब एक सेवा को नहीं कर पाता, गरीबों की प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पाएगा, गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की जो मिशन है वेलफेयर स्कीम को, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है, जब अपने जो क्लाइंट्स को समझेगा नहीं, अपने टीम को नहीं समझेगा, उसकी भावनाओं को, जज्बात को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो कैसे रियल लाइफ में सक्सेस होगा? कभी नहीं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस काम करता है कि आप अपने को जानना है, लेकिन दूसरों को भी जानिए, उसकी इमोशन को पढ़िए, उसको इमोशन को पढ़ने से आप सॉल्यूशन देते हैं बॉस। ये बहुत बड़ी चीज है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, टोन को पकड़ना है, उसको मैनर को पकड़ना है, उसके हिसाब से, यदि वो फ्रस्ट्रेटेड है, यदि सैड है। अब सिंपल है कि एक बंदा आया, आप चेयर पर बैठे हुए हैं, एक बंदा आया निराश है, रो रहा है आपके सामने, तो क्या आप हंसेंगे क्या? ऐसा थोड़े है। आप उसके इमोशन को रीड करके उसका सॉल्यूशन देंगे बॉस। तो आई ईक्यू जो होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, आपकी जिंदगी का एक ऐसा एबिलिटी है जो रिकॉग्नाइज करता है अंडरस्टैंड करने में अपने आप को और दूसरे को। यदि दूसरों के अपने इमोशन को पढ़ लिया, आप मास्टर बन जाते हैं। और दुनिया में जितने भी ये जो बिजनेस टाइकून होते हैं ना, वो आपको पब्लिक के इमोशन को पढ़ते हैं, उनके डिमांड को, उनके विश को, उनकी चाहत क्या है, उसके हिसाब से अपना बिजनेस प्लान बनाते हैं और सक्सेस करते हैं जी। इसलिए मेरा मानना है कि आपके इमोशंस को पढ़ने की एक कला होना चाहिए, महारत होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? फ्लो। यस,
जो थॉट प्रोसेस होता है फ्लो होना चाहिए इसके अंदर आपके, क्योंकि कोई भी सिचुएशन को, प्रोजेक्ट को, मिशन को, आज ऑन पैसिव क्या है, एक फ्लो से बढ़ रहा है, फ्लो है एकदम नीर की भांति प्रवाहमान है, उसके अंदर जो है ना पूर्ण वाला जो है ना स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए जी। ये बहुत बड़ी चीज है। आपको जनरलाइजेशन होता है आपके थॉट प्रोसेस में होता है, क्योंकि कोई भी डाटा से कैसे आप टॉप क्लास का चीजें बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप जनरलाइजेशन की जब बात करते हैं, जैसे बहुत सारे प्लेयर सिलेक्ट होते हैं ना, तो उसमें टॉप क्लास का 11 कैसे प्लेयर जैसे क्रिकेट में सिलेक्ट करते हैं, जो मतलब कोई भी गेम में, वही बिजनेस में भी होता है। तो बेस्ट माइंडसेट के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना बॉस। नेक्स्ट क्या है आपको, ह्यूरिस्टिक, ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो थॉट प्रोसीजर होता है, थिंकिंग होता है कि आप क्विक डिसीजन कैसे लेते हैं। याद कीजिएगा कि कोई भी चीजों में, क्योंकि मान ले कि क्योंकि आप जिंदगी के ऐसा पड़ाव होता है कि आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। आपने देखा था जब इंडिया में सर्जिकल जब पुलवामा हुआ था या मणिपुर में अटैक हुआ था, एक समय के बाद क्विक डिसीजन लिया था ना, हमने एयर स्ट्राइक किया था पीओके में और बालाकोट में। क्विक जजमेंट, कितना बड़ा रिस्क था, आप समझ जाइए कितना बड़ा रिस्क था, लेकिन हमने लिया। हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लिया, आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है जिंदगी के कुछ सिचुएशन ऐसा होता है कि आप मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप कितना क्विक डिसीजन लेते हैं, वो पेशेंट को जाकर पहुंचाते हैं हॉस्पिटल में, या आप यदि आपके पास नॉलेज है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट कितना देते हैं, इससे जिंदगी बच सकती है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि आप अपनी जिंदगी में हमेशा एक क्विक डिसीजन लेने वाला भी बनिए, ठीक है, ताकि सॉल्यूशन दिया जा सके। ये बहुत बड़ी चीज है। इमरजेंसी के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से आपको काम करने पड़ते हैं, ठीक है। इमेजिनेशन, यस, ये बहुत बड़ी चीज होती है आपके थॉट प्रोसीजर का, कि आपके अंदर एबिलिटी टू थिंक होना चाहिए अबाउट जो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, जो कभी हुआ नहीं है, लेकिन आप विजुलाइज कर लेते हैं, विजुलाइजेशन कर लेते हैं इमेजिनेशन के द्वारा। एक फिक्शन, फैंटेसी जो बनती है जी, ये सब क्या है, इमेजिनेशन का कमाल है। और ऑन पैसिव का नेक्स्ट सीन क्या है, आप इमेजिनेशन कर रहे हैं ना, ये होगा ये होगा, लेकिन इंटरनेट में आप जब सास कंपनियों का आप मॉडल पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको नॉलेज मिल सकती है कि कैसे कोई सास कंपनी काम करती है। तो नॉलेज आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा एंटिटी है। गेट अ पॉइंट। इंडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई आप गेस करते हैं बहुत, क्योंकि गेसिंग भी बहुत बड़ी चीज होती है आपकी जिंदगी में। कोई एक सही रास्ता, मल्टीपल रास्ते में कैसे एक रास्ता को चुनते हैं गेस करके, तो इंडक्टिव रीजनिंग है, इन्फेरेंस है, स्टिंक्ट है। आप इंटरनल पर काम करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, कभी आप जिंदगी में गलत कर देते हैं, तो आपको थॉट प्रोसेस को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हाँ मेरे से गलती हो गई है, मैं एक करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है। इंट्यूशन बहुत काम करता है आपके थॉट प्रोसीजर में, कि कोई चीज को कैसे कॉन्शियस, ठीक है, मैंने आप नहीं होता है, कोई प्लान ही नहीं किया लेकिन इंट्यूशन होता है, अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है। एक आप पहले से आप जज्बात को समझ आते हैं कोई चीज को, ठीक है। जैसे आप जो मूवी में देखते हैं ना, कोई मूवी चल रही है, आप थिएटर में बैठे हुए, हाफ टाइम पूरा हो गया, तो हाफ टाइम में अनुमान लगा सकते हैं, अरे इस सीन है, नेक्स्ट टाइम में क्या हो सकता है। अभी तो विलेन ने हीरो को मारा है, अभी हीरो शिकार करेगा विलेन का, आप समझिए। क्योंकि कोई फिल्म बनती है, दोनों पक्ष को दिखाया जाता है, सिर्फ हीरो विलेन को ही ठोक देगा तो फिल्म में क्या मजा रहेगा। विलेन भी तो एक बार जीतेगा जी, और लास्ट में किसको जिताया जाता है, हीरो को, और विलेन को खत्म कर दिया जाता है। तो ये इंट्यूशन आप कर सकते हैं कोई चीज को, कि आने वाला क्या होने वाला है पहले, क्योंकि पूरा ये कंप्लीट यहाँ पर बेस्ट माइंडसेट काम कर रहा है। इसलिए इस ये थॉट प्रोसीजर है जिसको आपको समझना है। जजमेंट, याद कीजिए, जो सुप्रीम कोर्ट में आपको जो डिसीजन देते हैं, को ये जो हमारे ऑनरेबल सभी जो जितने जुडिशरी के लोग हैं, जज हैं, वो डिसीजन देते हैं बॉस, वो क्या करते हैं, एक ट्रस्ट जो मेजर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि एक्शन और डिसीजन ये बहुत मायने रखता है। लॉजिकल थिंकिंग, यस, आपको लॉजिकल थिंकिंग, आउटकम कोई भी सिचुएशन में आप जो है ना लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग बहुत मायने रखता है। कैसे आप अपने लॉजिकल रहते हैं थॉट प्रोसीजर के साथ, ये बहुत बड़ी चीज है। मेटाकॉग्निशन काम करता है लाइफ प्रोसेस में, कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, कोई भी है, तो सवाल ये है कि लाइफ में आप कैसे थिंकिंग करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपका सोचने का तरीका, क्या सोचते हैं,
कैसे सोचते हैं, और अगले को देखना है। आप जब तक अगले को पढ़ेंगे नहीं तो आप अपने थॉट प्रोसीजर को टॉप क्लास ले नहीं जाएंगे। इसलिए कुछ बोलने से पहले सोचना भी है बॉस। माइंड का आई, सुनिए, माइंड का भी आई होता है, 2 आई भगवान ने यहाँ दिया, एक थर्ड आई यहाँ होता है जो शिव के पास था। लेकिन आप डेवलप कर सकते हैं कोई भी सीन को विजुअलाइज करने का, ठीक है, आपके हेड के माध्यम से, ये माइंड आई, ये बहुत बड़ा हेल्प करता है, ठीक है, किसी भी मोमेंट पर। मोटिवेटेड रीजनिंग याद कीजिएगा। मोटिवेटेड रीजनिंग क्या होता है कि आप मोटिवेशन के द्वारा कैसे अपने थॉट प्रोसेस को हाई ले जाते हैं, ठीक है, डाउनफॉल है जिंदगी में। लेकिन अंडर का जो मोटिवेशन है ना, इंस्टिंक्ट है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको हमेशा बूस्टअप करता है, मॉरल को आप बूस्टअप करता है, अप ले जाता है। ये थॉट प्रोसीजर है। प्रिडिक्शन, गेसिंग करना, ठीक है, कि आने वाला वक्त में क्या हो सकता है, फ्यूचर इवेंट के बारे में, ये बहुत ट्रेंड क्या हो सकता है, आप अनुमान कर सकते हैं बहुत। तो प्रिडिक्शन ये भी एक थॉट प्रोसीजर है। रैशनल थॉट, हमेशा कोई भी चीज को सिचुएशन के हिसाब से आपको परसेप्शन, जजमेंट, इंट्यूशन, ये फैक्टर बहुत काम करता है। रैशनल थॉट होना चाहिए, सिचुएशनल अवेयरनेस होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन में हो गए आपके अंदर, उसके अंदर एक जागरूकता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अवेयरनेस, आज की दुनिया में इग्नोरेंस सबसे बड़ी बीमारी है, याद कर लीजिएगा। नॉलेज का ना होना सबसे बड़ी बीमारी है। सिख चीजें वहीं से नेगेटिविटी आती है। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप लीजिए नॉलेज ना, आप स्टडी कीजिए, बस बहुत बड़ी चीज होता है। सोशल कॉग्निशन, यस, आप सोसाइटी में रहते हैं, आप अकेला नहीं रह सकते, कम्युनिटी में रहते हैं, आपको कैसे बिहेव करना है। आप बिजनेस ऑनर है, अपने कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है। क्योंकि आज फाउंडिंग मेंबर है, आपका वेबसाइट बनने वाला है, पूरा बिजनेस रन होगा, दुनिया के टॉप क्लास के लोग होंगे, और क्रीम लोग होंगे, नॉन क्रीम लोग होंगे, डिफेंस सेक्टर के लोग होंगे। आपसे हाई पढ़े लिखे लोग, कलेक्टर कोई आएगा, कोई मैथमेटिशियन आएगा, कोई इंजीनियर आएगा, कोई डॉक्टर आएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, कोई मिनिस्टर आएगा आपके लिंक के थ्रू। तो उनको कैसे एड्रेस करना है, आप ये समझिए। यू विल बी टॉप ऑफ द वर्ल्ड, अब पूरी दुनिया आपके नीचे आने वाली है। क्या समझ सकते हैं बॉस? इस सोशल कॉग्निशन, लोग कैसे आपको हैंडल करना है, वो नॉलेज, वो कम्युनिकेशन स्किल आपको पैदा करना है बॉस। ये बहुत बड़ी चीज है। ट्रेन ऑफ थॉट आपके जिंदगी में बहुत मायने रखता है कि आप कोई थॉट प्रोसीजर को, ठीक है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है। बिना ट्रेनिंग आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये ट्रेनिंग हो रहा है आपको इमोशंस के लिए, ठीक है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि आपको इमोशंस, अपने थॉट प्रोसीजर को, ये बहुत सारा मैंने आइडिया बताया कैसे रेगुलेट करना है, इस पर काम करने की जरूरत है हमें। ये जब बिजनेस ओनर होने के नाते, तभी आप कस्टमर को, क्योंकि याद कर लीजिएगा, ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ताकत क्या है? कस्टमर, दे आर द सुपर बॉस, दे आर द ज्वेल। वही आपके, आपने कितना शानदार दुकान बना लिया जी, पूरी लाइन लगा लिया टॉप क्लास का, ठीक है, पूरा एसी बना दिया, पूरा सजा दिया, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे हैं ना, अगले दिन वो बंद हो जाती है दुकानें। लेकिन पैसिव का जो दुकान है, जो यहाँ मेगा स्टोर बन रहा है, जो सुपर किंगडम बनाया जा रहा है, वही इसके थ्रू वो कनेक्ट एक महान कंपनी होने वाला है। सुनिए ध्यान से, वो ट्रैकर आ रहा है, ओ स्टाफ, ओ डेस्क, ओ काउंटिंग, ओ मैन, ओ हायर, ओ पीयर, ओ नेट, ओ मेल, ओ ट्रिप, जितना भी प्रोडक्ट ये लाइन लगा रहेगा एक से, ठीक है। जिसको जो खरीदना है खरीदेगा। यहाँ अट्रैक्शन होने वाला है। वो कनेक्ट कस्टमर को नहीं खोजने वाला है, कस्टमर वो कनेक्ट को खोजने वाला है। मैं बता दे रहा हूँ, ये सबसे बड़ी डिफरेंस है। आज के मार्केट में क्या है, दुनिया की सारी कंपनियां कस्टमर को खोजती हैं, भाई मेरे को खरीद लो, लाइक करो, प्रमोशन करती हैं। लेकिन पासिव के पास जस्ट उल्टा सीन होने वाला है। यहाँ कस्टमर हमारी प्रोडक्ट को खोजते हुए, रेस करते हुए, वो मैराथन रेस करेगा, ये 100 मीटर का रेस करेगा, वो अट्रैक्ट होगा यहाँ पर। ये सबसे बड़ी खासियत है। यह सीन उल्टा होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर बोला ना सीओ ने, 1000% नॉट, बिलियन% कंफर्म है कि ऑन पास वी विल चेंज योर लाइफ। क्योंकि होल वर्ल्ड 5.64 बिलियन इंटरनेट यूजर्स, दे आर वेटिंग टू अट्रैक्ट यू बॉस। ये बहुत बड़ी चीज है। ये टॉप क्लास का थॉट प्रोसेस का कमाल है। पॉजिटिव, वाइब्रेंट एंड आपके अंदर वो चिंगारी होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्त, क्या अपडेट है। देखिए, सबसे पहले पार्ट 1 की बात करते हैं। मार्टिन डी गामो सर ने आया था, उन्हें स्पष्ट बोला कि जिंदगी के लाइफ चैप्टर 2.0 स्टार्ट होने वाला है। एक्साइटिंग रही है बॉस, और आपकी जिंदगी में जनरेशन बाय जनरेशन इनकम मिलेगा, रेसिडुअल इनकम मिलेगा, आप समझ जाइएगा। क्योंकि
सब पिलर बनाया जा रहा है, लॉन्ग टर्म जर्नी है जी, एक रोड मैप बनकर रेडी है, बस इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि ऑन पैसिव एक फाइनेंशियल सुनामी, एक वित्तीय आजादी लाने वाली एक रिवोल्यूशन है जिंदगी का, जहां पर आपकी लाइफ जो है ना हमेशा स्ट्रोंगर होने वाली है। ऑन पैसिव के पास उन्हें बोला टेक्नोलॉजी है जो कभी भी एंड नहीं होने वाला है, और डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जी। हमारे पास डिस्ट्रप्टिव के अलावा याद कर लीजिएगा ग्रीन टेक्नोलॉजी है, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट को भी पोषण करने वाले हैं। आज के मार्केट में क्या है, फुल ऑफ कंपटीशन है, उन्हें बोला, लेकिन आपके पास आर्ट ऑफ सेलिंग है। आप समझ सकते हैं, सेलिंग ऑफ आर्ट है तो आप बहुत बड़े आग जा सकते हैं। मैंने आपके पास बेचने की कला है ना, लेकिन पैसिव के पास क्या है, दुनिया में जितने भी कंपनियां हैं प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, उनके अंदर क्या है, आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ अपना पैसा बनाते हैं और ले चलते हैं जी। लेकिन ऑन पैसिव के पास जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड क्लास है, कोई तुलना है क्या, कोई तुलना नहीं है बॉस। मास्टरपीस प्रोडक्ट, नॉइज आई कैंसलेशन देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू स्पीच, वाह, वर्सटाइल कैरेक्टर है हमारा हर प्रोडक्ट के अंदर। अभी देखिए गूगल के पास गूगल एनालिटिक्स है, और ट्रैफिक को ऑब्जर्व करने ट्रैक करने के लिए हमारे पास क्या है, वो ट्रैकर है जो पूरी ट्रैफिक को ट्रैक करेगा। जमीन और आसमान का खेल होने वाला है आज, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए मेरा मानना है ऑन पैसिव हर पीस को इंटीग्रेट किया जा रहा है स्पष्ट। मिस्टर रे रेफरी सर ने बोला, जैसे कि आप जानते हैं 7 डेज का रिकैप दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, ऑलरेडी आप जानते हैं। मैं वो बात करना चाहता हूँ दुनिया की। आपको लगता है फेसबुक आप फ्री में जाते हैं ना, टाइम गुजारते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स, लेकिन आपको मालूम है आपके डाटा से कंपनियां बिलियन डॉलर कमा रही हैं, पूरा एक किंगडम बना रही है, खान बना के रखा है, बता दे रहा हूँ। लेकिन ऑन पैसिव एक सुपर इंडस्ट्री होने वाला है, सुपर इंडस्ट्री होने वाला है, इंडस्ट्री के अलावा सुपर इंडस्ट्री। 100 कंपनियों का खान संभाल नहीं पाइएगा बॉस, समझिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनेड है ना, ओट्री, मोमेल, जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, फ्री प्रोडक्ट मिला है, एंगेज है, वहां भी इनकम बन रहा है आपको, ठीक है। वो कनेक्ट में जितना मीटिंग अटेंड कर रहे हैं वहां पर बन रहा है बॉस, क्योंकि डाटा डाटा जितनी खर्च होता है उतनी कंपनियों को पैसा होता है। डाटा का बहुत बड़ा खेल है जी, डाटा गोल्ड है आपको दुनिया में, याद कर लीजिएगा। इसीलिए आप कंसर्न मत कीजिए जी, आप सोशलाइज कीजिए अपने आप को, फिर आप आइए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रमोट कीजिए अपने लिंक को, ठीक है। नहीं कर सकते हैं तो अपने आप को फायर कीजिए, आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। चिलैक्स रहिए, चिलैक्स रहिए, नॉट कंसर्न, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है, थिंक पॉजिटिव, द बेस्ट थिंग्स आर कमिंग ऑन पैसिव माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट 2 सीओ साहब आते हैं, धमाल करते हैं, उन्हें स्पष्ट बोल लिया वी आर फोकसिंग मेनली ऑन मूविंग ऑन फॉरवर्ड, हम आगे फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, यही होना चाहिए, फोकस लेजर है। देखिए एक टॉप क्लास की जो कंपनी है उसके सीईओ का फोकस लेजर है, हमारा सीईओ लेजर लाइट जैसा, ये हमारा डायरेक्शन है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मेजर चेंजेस आर कमिंग ऑफ, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। नेक्स्ट बोल लिया पूरे, वी विल बी द ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन ह्यूमन काइंड लाइफस्टाइल, पूरी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाले हैं जी। और रियल सरप्राइजेज आर कमिंग, वो जो रियल सरप्राइजेज है आप भी महसूस कर सकते हैं। ये सिस्टम बनाया ही क्यों जा रहा है मेरे को ये बताइए, क्योंकि एक टॉप क्लास जर्नी है, इनक्रेडिबल जर्नी है, जहाँ रिस्पेक्ट मिलने वाला, पावर मिलने वाला, प्रेस्टीज मिलने वाला, सम्मान मिलने वाला है। तो कौन पास अपने विजन और मिशन के लिए हमेशा ललायत है। एक सोच का नाम है ये ऑन पैसिव, एक विचारधारा का नाम है, एक थिंकिंग का नाम है जो पूरे वर्ल्ड को एम्पावर करने वाला है बॉस। क्योंकि आवाज दुनिया में उन्हें स्पष्ट बोला, बहुत सारी कंपनियां हैं उनके पास केयरिंग नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, आम आदमी के लिए प्योर हर्ट नहीं है। आम आदमी को कैसे एम्पावर करना है, कोई हर्ट नहीं है जी, उनका हर्ट क्या है, बंजर है। उनके दिमाग चलती है कैसे लोगों को लूटना है, लालच से भरी हुई है, करप्शन की बुनियाद है आज इंटरनेट में, समझे बॉस। ये बहुत बड़ी महाबीमारी है इंटरनेट की दुनिया में। लिगेसियो ने बोल दिया, प्रॉमिसिंग किया है, वक्त लग रहा है, जो तूफानों से जूझता है वही उसी को मझधार मिलता है बॉस। कहते हैं ना परिंदे को मिलेंगी मंजिलें यकीनन उनके फैले हुए पैर, बोलते हैं खामोश रहते हैं अक्सर जिनके जमाने में हुनर, बोलते हैं यहाँ हुनर बोल रहा है, स्किल बोल रहा है, ग्रेट माइंडसेट बदल बोल रहा है बॉस। And on past is coming with a positive impact on the planet.
वी आर गोइंग टू रिसेव द प्लान अनडाउटली। सीओ ने स्पष्ट बोल दिया, क्योंकि जो मेजर बिग चेंजेज आ रहा है आप महसूस कर सकते हैं। ये सीओ बताएंगे नहीं। अब क्यों नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं एप्पल का, स्टीव जॉब्स ने कभी बताया क्या हम ये इंग्रेडिएंट्स डालते हैं? कभी दुनिया की और कंपनियों को शेयर किया गया? नोकिया को दिया क्या? नोकिया का मार्केट को खत्म कर दिया, चली गई ना। क्या वो लावा को दिया, लावा भी चली गई। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां मोबाइल की आई। तो कोई भी कंपनी अपने अंदर के जो इनोवेशन है ना, उसका पैटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, शेयर नहीं करती है। सीईओ जो है ना, अब फाइनेंशियल बता दे रहा हूँ, जिंदगी में दो चीज बहुत खतरनाक होता है। एक तो पैसा, जब पैसा बता दो। आज गौतम पाल जी हैं, सिंपल ग्रेट लीडर है, अब इनके पास पैसे आ जाए उन पैसिव से, अगले दिन क्या चिल्लाएंगे, क्या मेरे पास जो है इतने करोड़ आए, आप ऐसा खेल करेंगे तो अगले दिन शिकार कर लेगी दुनिया। मालूम है ना आपको कितनी पैसे दोस्त भी बनाती है, दुश्मन भी बनाती है बॉस। तो अच्छे से लोग दिमाग हिल जाती है। इसीलिए सीओ ने अभी तक जितना खुलासा कर दिया ना, तो वहां गेम जो है ना आउट ऑफ ट्रैक पर जा रहा था। अब मैं बता दे रहा हूँ क्यों। कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर का देते हैं, होता क्या है, खेला हो जाता है। दुनिया की बहुत सारी कंपनियां जो है ना डर गई है, बता दे रहा हूँ, डर गई है। ट्राइमाम है उनके अंदर, कंपन है, एक राजा है, एक साम्राज्य का वो बैठा हुआ है सिंहासन पर, राजा किंग और क्वीन बनकर। और दुनिया कोई आता है वो आप वहां जगह ले लेगा यार। एक गरीब आदमी जाकर उस सिंहासन पर बैठ जाएगा, उसको बर्दाश्त होगा? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। आम आदमी एक महान इमारत बना ले, एक राजा का महल जैसा बना दे, कोई बर्दाश्त कर पाता है? लेकिन आम आदमी मैंने एक कॉमन पीपल मैं बता रहा हूँ, कॉमन पीपल जो गरीब, जो बंजारा है, किसान है, मजदूर है यार, जो फाउंडिंग मेंबर है, वो आईना दिखाने वाले पूरी दुनिया को बता देना अपने ग्लोबल पे एक पूरा एक ओब्लेस के द्वारा कि हम में पावर है, दुनिया को बदलने का कैपेसिटी है। सीईओ ने एक कॉमन पीपल को जो डाउन ट्रेडन पीपल को एम्पावर किया $97 में। आप समझ सकते हैं ये लोगों को पच नहीं रहा है, दुनिया के बहुत लोगों के, कंपनी को तो और पच नहीं रहा है। इसलिए सीईओ ने बोला कि जो अंदर की इंफॉर्मेशन है, स्पष्ट बोल दिया मेरे किचन में क्या बन रहा है मैं जानता हूँ, पूरा अंदर कंट्रोल में रख दिया है, कोई मैटर लीक नहीं हो सकता है। जो आएगा वही इसके अंदर आएगा, बैक ऑफिस में आएगा। क्यों? कुछ भी बातें सीईओ करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से पूरा वायरल हो जाता है, और ये बातें दूर की कंपनियों तक जाती हैं। और वो कंपनियां क्या करती हैं, अरे आज बताइए जूम है, जूम का मार्केट देख रहे हैं, वो करेक्ट आने के बाद जूम टिक पाएगा? कोई तुलना ही नहीं है जी, डर गई है कंपनियां। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि कंपटीशन का वर्ल्ड है बॉस, वही टिकेगा जो फिट है, जो वही हिट होगा। तो ऑन पैसिव अपना पैटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिकोरम, अपना इनोवेशन को सिक्योर करना चाहती है। और खासकर मनी के बारे में बता दे रहा हूँ, ये बाई प्रोडक्ट है जो वैल्यू बन रहा है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। अब इतनी बड़ी बाई प्रोडक्ट यहाँ पर मनी आने वाला है, यहाँ पर गेम्स ऑन होने वाला है, ध्यान दीजिए, गेम ऑन होने वाला है, कि पूरा सीन चेंज होगा। और आपकी उम्मीद से भी, आप जितना सोचते हैं ना उन पैसिव के बारे में, जितना ज्ञान रखते हैं, अभी तो आप लोग सभी नए नए इंटरनेट के खिलाड़ी हैं, अभी आपने समझा ही क्या है? अभी इंटरनेट क्या होता है ना, एबीसीडी सीख रहे हैं बॉस। पूरा बिजनेस का अंपायर कैसे बनता है वो सीईओ को मालूम है, वो ब्लूप्रिंट बनकर रेडी है। आपको जितना नॉलेज दिया जा रहा है उस नॉलेज पर ट्रस्ट कीजिए, उसके बाद फ्लो के साथ एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्या है, सीईओ को भी मालूम है, ऑलरेडी बताया गया था आपको, कि जो फेज नंबर 1 का, ठीक है, 5 मल्टीपल डाटा से जो 3 मल्टीपल डाटा सेंटर, सॉरी 3 मल्टीपल डाटा सेंटर, आपका ओएस अपना हो गया, ओ वेरीफाई, ओ डोमेन, और जो मल्टीपल प्रोडक्ट आने वाले हैं। लेकिन आपका जो वेबसाइट मिलेगा, वहां से कैटमो जो चालू होगा, कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन, ऑटोमेशन, ट्रैफिक मनी, रेसिडुअल मनी आपको जो मिलने वाला है। और खास ऑटोमेशन, कैसे ट्रैफिक देना है, क्योंकि ट्रैफिक ही आपके बिजनेस की सबसे बड़ी पूंजी होने वाली है। इसलिए सीईओ ने स्पष्ट बोल दिया, वी आर रिवैम्पिंग, ध्यान दीजिए, restructuring, reconstructing, redesigning the everything. Yes, don't forget, we are making from scratch, 100% scratch, boss. स्क्रैच कंपनी 100% है। ऐसे नहीं है कि हमने किसी और कंपनी को खरीद कर उसको ऊपर से डिजाइनिंग करके एक नया कंपनी बना दिया, ऐसा नहीं है बॉस। ऑन पास की जो इमारत है ना, वो जीरो से स्क्रैच किया,
आज इतना समुंदर बन गया है, रोबस्ट बन गया है, 100% स्क्रैच। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, इस साइनिंग होने वाला हमारा फाउंडेशन स्टोन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सीओ ने स्पष्ट बोल दिया। आप प्राउड महसूस कीजिए एक ऑन पैसिव होने के नाते। और जो फाइनेंशियल जो सुनामी की जो बात है ना होने वाली है, सीओ ने स्पष्ट बोल दिया, विल बी सीइंग सरप्राइज, मैनी सरप्राइजेज आर कमिंग। वो सरप्राइजेस क्या है? आप जिसकी चाहत करते हैं, जो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, वो मिलने वाला है बॉस। और आपका जिंदगी में, आपकी जिंदगी में एक जो चिंगारी है ना, आपका रोबस्ट होने वाला है। एक शानदार महफिल होने वाली है। आपकी जिंदगी का देखने और दिखाने का वो जो मैंने कहते हैं ना, सूरत और सीरत बदलने वाला है। आप यहाँ पर एक बहुत बड़े पोजीशन पर है, टॉप पोजीशन पर है। याद कर लीजिएगा, ऑन पैसिव सिर्फ बिजनेस नहीं है, ऑन पैसिव इज गोइंग टू वे ऑफ लाइफ टू रिसेव द प्लैनेट, एंड इट इज a done deal, 1000% done deal, my dear friends। दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है ना ऑन पैसिव को इस ब्रह्मांड में आने से रोक सकता है। क्यों? एक्सेप्ट गॉड। क्योंकि ऑन पैसिव की जो बुनियाद है ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, यहाँ बेस्ट माइंडसेट लग रहा है। अब पूरा वो ये स्पिरिचुअल पावर भी है जी। यहाँ पर आईक्यू भी काम कर रहा है, ईक्यू भी काम कर रहा है, स्पिरिचुअल पावर भी काम कर रहा है। तो समझ सकते हैं। और जब कैपेसिटी की बात करते हैं ना, आप $1 मिलियन का प्लेयर है, $1 बिलियन का मालिक बनने वाले हैं। मैं बता दे रहा, $1 बिलियन का, मल्टीपल $1 बिलियन का मालिक बनने वाले हैं। इतने बड़ी सट्टा आज पर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर विजुलाइज कीजिए, राजा का सिंहासन मिलने वाला है बॉस, रानी का सिंहासन मिलने वाला है। आप बस वो बैठने वाले हैं। तो आपका एक दुनिया होगा ऑन पैसिव, आपकी दुनिया बना रही है। आज की दुनिया क्या है? आपकी फीकी है ना, वो ताजा नहीं है, उसमें ताजगी नहीं है भाई। उसके अंदर वो मसाला नहीं है, वो स्पाइसी नहीं है, थ्रिलिंग नहीं है, रोमांचकारी नहीं है, वो सिंपल है, बोरिंग है ना। लेकिन उन पास उस दुनिया को एक रोमांचकारी देना चाहती है, स्पाइसी देने वाली, एक वैल्यू दे रही है, जहां पर दुनिया के टॉप क्लास लोग महसूस करते हैं एक पॉश इलाका में रहेंगे। आपका एक अलग ही दर्जा होने वाला है। जिंदगी की हर ख्वाहिश पूरी होगी। तो आप समझ सकते हैं, वो क्रूज विमान भी चाहिए, या मालदीव की सैर करिए, या दुनिया की जो भी आपको एंटरटेनमेंट करना है, एंजॉय करना है, वो रियल ब्लॉकबस्टर मूवी अब शुरू होने वाली है बॉस। ये जो मूवी है ना, अनएंडिंग होने वाली है। आप समझ सकते हैं, कभी नहीं खत्म होने वाली है, 1000 साल तक भी। इंटरनेट जब तक है ना, अब इंटरनेट तो धमाल कर रहा है ना पूरी दुनिया के लिए। आज मानव सभ्यता का सबसे बड़ी महानतम आविष्कार वो है, वो इंटरनेट है बॉस। आज 1G से देखिए 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G में शिफ्ट होने वाले हैं। 10G नॉर्वे तो एडवांस हो गया बॉस, आप समझिए। साउथ कोरिया की बात करते हैं, जापान का ऑलरेडी वो 6G इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फिर वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइफाई, लेजर इंटरनेट, आपको क्वांटम इंटरनेट। आज के 2020 साल के बाद, 25 साल के बाद 2050 तक क्वांटम इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। क्यूबिट्स होगा, क्यूबिट्स होगा, समझ सकते हैं क्यूबिट्स। अभी बिट का इस्तेमाल करते हैं ना, क्यूबिट्स होगा, जहां पर 1 सेकंड में यार एक पूरी फुल का मूवी जो है ना, मल्टीपल टेराबाइट का आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतना बड़ा पोटेंशियल होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ। और लेकिन उस इंटरनेट की महानतम कंपनी कौन होगा बॉस? ऑन पैसिव होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बॉस, फायर रहिए। जिंदगी का वो तूफान आने वाला है, जो आपके जिंदगी में एक ऐसा चैप्टर लिखने वाला है ना, गोल्डन चैप्टर सक्सेस का, कि पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी, परेशान हो जाएगी जब आप बताएंगे ना। बस इस मजे को लेने के लिए जो है ना, हमने जिंदगी का एक पेन पीरियड देखा है, एक एक बहुत ही डार्क चैप्टर देखा है। ये डार्क चैप्टर मैं मानता हूँ, ये गोल्डन चैप्टर आने से पहले आप झेल रहे हैं ना, स्ट्रगल कर रहे हैं, कितनी आप पेन से गुजर रहे हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ। कितने इमोशन आपके अंदर उठा चढ़ाव होता है। इसलिए मैं मानना है, जिंदगी में वो लाइट पीरियड आने से पहले आपको फेलियर, आपको उम्मीद की जो किरण मिलने वाली है, तूफानों को झेलना पड़ता है। आप झेल रहे हैं बॉस, इसीलिए आप जो है सक्सेस होने वाला है। इसलिए if your pain is going to be mightier, but your success is going to be million times mightier than your pain, my dear friends। तो वो डर का जो समय है ना, वो खत्म होने वाला है। अब जिंदगी की महान सफलता, और वो जो सफलता होगी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों से भी ऊपर होगी, जहां पर पूरे वर्ल्ड का एक बॉस फैक्टर, एक्स फैक्टर बनकर, एक बिजनेस टाइकून बनकर, एक शानदार जिंदगी, वो मसल पावर भी आएगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, डिग्निटी भी मिलेगा,
और एक बहुत बड़ी एक वैल्यू भी बनेगा बॉस, जो कॉन्पासिव वैल्यू का नाम है पूरी दुनिया के लिए। इस महानतम दुनिया में एक अविस्मरणीय, अकल्पनीय, एक महानतम कंपनी में आपका स्वागत है बॉस। रेडी रहिए फायर करने के लिए। ओके, ईच एंड एवरीथिंग इज कमिंग विद परफेक्टली। और जिसका इंतजार कर रहे हैं वो जून, ऑलमोस्ट मई से जून में शिफ्ट हो रहे हैं बॉस, वो डिलीवर होने वाला है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 में ही वो तूफान आ जाएगा। और हर बंदा जो है ना, जिंदगी का एक शानदार जिंदगी जीते हुए दिखेगा। जब हम लोग मिलेंगे ना, अलग ही पार्टी होगी, मस्ती होगी, एंजॉयमेंट करेंगे, गले मिलेंगे और महसूस होगा। अभी तो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, देखा भी नहीं है, ठीक है, फिजिकल, लेकिन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑन पैसिव समझिए, पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा डोर है ना, इसमें लव है, कंपेशन है, एक ब्रिज है, वर्ल्ड का ब्रिज चैनल है जी। इसमें तरंग है, एक खुशबू, एक महक है, पूरे वर्ल्ड की फिजा के बदलने की एक चाहत है उन पैसे में। एक मानवता का एक प्रकाश पुंज है बॉस, पूरे सूरज की एक मसाल है उन पैसे। लेट्स फायर योर बेस्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ इज कमिंग ऑन द वे एंड कीप रॉकिंग ऑल द टाइम्स माय डियर फ्रेंड्स। Thank you so much. Thank you so much. Whatever you want, it is coming. You want verify, it is coming. You want bonus, commission, all the pending withdrawal, it is going to clear very soon. सीओ ने स्पष्ट बोल दिया है, वो पैसे सीओ ऑन पासिंग के अकाउंट में आ गए। अब वो ट्रायल में जा रहा है, ट्रायल में मल्टीपल ट्रायल होने के बाद, वॉल्यूम के बाद, क्योंकि पूरे 212 कंट्री में देने हैं, उसको पूरा ट्रायल करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको वॉलेट में डालना। फिर मास्टर कार्ड भी आ रहा है बॉस, मास्टर कार्ड भी आ रहा है, मास्टर कार्ड से भी इनकम बनने वाला है, शॉपिंग से समझिए, वो वेरीफाई से भी आपको बनने वाले हैं। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने वाले हैं। और अंत में क्या है, जिंदगी की हर बीमारी का इलाज होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू आर अ चैंपियन एंड नेवर गिव अप ऑल द टाइम्स। कीप रॉकिंग माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू होस्ट। थैंक यू राज दामोदर सर, कैप्टन हेड मिस्टर राज दामोदर सर। ऑन पैसिव द भारत इंटरनेशनल चैंपियन ग्रुप से आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। इसी तरह आके हम नॉलेज देके जाके जाए, थॉट प्रोसेस लेके आपने जो बात किया है, इस माइंड ब्लोइंग सर, एक्सलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू सर। पेरिस पैसिव का इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म होगा जिसका ऑल वर्ल्ड इंटरनेट सॉल्यूशन होगा, और हम लोगों का बिलियन डॉलर मालिक होगा। बहुत अच्छा से बात किया सर, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। ऑन पैसिव द भारत इंटरनेशनल चैंपियन ग्रुप से आपको बहुत बहुत थैंक यू স্যার, থ্যাংক ইউ মোস্ট থ্যাংক ইউ। তো নেক্সট পার্টিসিপেটে আমরা যাচ্ছি, সেখানে আমাদের ওখানে প্রেজেন্ট আছেন বামাচরণ স্যার, সরিতা বস্ত্রকম ম্যাম, যোগশ্রী মার্কম ম্যাম, সোমাশ্রী মল্লিক ম্যাম, আচ্ছা, মিতালি চক্রবর্তী ম্যাম, আচ্ছা, এখানে সামিরিজা স্যার আছেন, এখানে বিনয় বিজন স্যার আছেন, আমাদের এখানে আছেন বহু বিশিষ্ট স্যার ম্যামেরা উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা উপস্থিত হয়ে আমাদের এই ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের শোভা বাড়িয়েছেন। তার সেই ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। এইভাবেই আসবেন, নলেজ দিয়ে যাবেন, প্রত্যেকেই স্যার ম্যাম উপস্থিত থাকুন এবং শুরু থেকে শেষ অবধি থাকবেন, প্রত্যেকেই ওয়েলকাম করব সময়ের দিকে ধ্যান দিয়ে। তো আমি এখানে মোস্ট ওয়েলকাম করব, আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থিত আছেন, আমাদের মধ্যে ম্যাম উপস্থিত আছেন মিতালি চক্রবর্তী ম্যাম। তো ওনাকে ওয়েলকাম করব। ওনাকে ওয়েলকাম করার আগে আমি একটু বিজ্ঞপ্তি দিই। তো আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন রথিন চক্রবর্তী স্যার। তো আসুন, মোস্ট ওয়েলকাম জানাই মিস্টার রথিন চক্রবর্তী স্যার। আপনি আসুন, আপনি আমার মাইক্রোফোনটা হ্যান্ড ওভার করুন এবং আজকের এই অনুষ্ঠানটাকে সুন্দরভাবে আগের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। প্রত্যেক স্যার ম্যাম আসবেন, সুন্দরভাবে উপস্থাপনা দেবেন। তো সেই জায়গা থেকে আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করে রাখলাম, মিতালি চক্রবর্তী ম্যাম আসুন এবং হ্যান্ড ওভার করে দিচ্ছি রথিন স্যার মহাশয়কে। আপনি সুন্দরভাবে অনুষ্ঠানটাকে আগের দিকে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলুন। মোস্ট ওয়েলকাম রথিন চক্রবর্তী স্যার। রথিন চক্রবর্তী স্যার, মোস্ট ওয়েলকাম স্যার। অ্যাভেলেবেল আছেন স্যার?
ইয়েস, তো নো প্রবলেম। তো আমরা প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থিত আছেন, মিতালি চক্রবর্তী ম্যাম, সোমাশ্রী মল্লিক ম্যাম আছেন, অবশ্যই আপনাদের উপস্থাপনা নেব। তো মোস্ট ওয়েলকাম মিতালি চক্রবর্তী ম্যাম, মোস্ট ওয়েলকাম ম্যাম। Thank you. তো ভেরি গুড আফটারনুন টু অল অফ ইউ। আমার অনটাসি ওয়ার্ল্ডের সবাইকে অনেক স্বাগতম, অনেক ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা সবাইকে জানাই। তো আমি মিতালি চক্রবর্তী ফ্রম কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো আলোচনা দেখুন দুর্দান্ত, যা কিছুই আলোচনা হচ্ছে সবটাই আমাদের অনপ্যাসিভকে ঘিরে। অনপ্যাসিভ আজকে আমাদের জীবনে একটা বিশাল স্বপ্ন দেখতে শিখিয়ে দিয়েছে। আমরা কিছুতেই, যারা এই সৈন্যবাহিনী তৈরি হয়ে গিয়েছি না এসআরের, কিছুতেই পা পিছু করতে রাজি না আমরা। কারণ আমরা বুঝে গেছি আমাদের এসআরের মিশন ভিশন, এবং আমরা এটাও বুঝে গেছি আমাদের মিশন ভিশন। কারণ আমরা প্রত্যেকেই একটা সুন্দর লাইফ, একটা করাপশন ফ্রি লাইফ লিড করতে চাই, যারা অবশ্যই সেটাকে পছন্দ করি। তো আমরা আশা করি যারা এখানে এসে গেছি, সমস্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমরা শুনলাম। মিস্টার দামোদর স্যার, আপনাকে অনেক থ্যাঙ্কস, আপনি অনেক সুন্দরভাবে সবকিছু ইলাবোরেটলি ডেসক্রাইব করেছেন, তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমিও অবশ্যই সমৃদ্ধ হলাম, বুঝতে পারলাম, জানতে পারলাম, যেটুকু অজানা ছিল নিলাম। আসলে আমাদের প্রত্যেকেরই টেকনিক, বলার ভাষা, ভঙ্গি সবটাই আলাদা। বুঝি আমরা সবাই, বিস্তার আমরা সবাই করতে পারি না, এটাই আমাদের প্রবলেম। তো যাই হোক, আজকে 360-তে আমরা স্যারকে পেয়েছি। তো আমরা ডেফিনেটলি মিস্টার অ্যাশ মুফারের সাথে এক হয়ে থাকবো, কারণ আমাদের স্যার একটা যেন পুরো বট বৃক্ষের মতো, জাস্ট লাইক এ বেনিয়ান ট্রি। আমার কাছে তাই লাগে, কারণ উনি বট গাছের তলায় গিয়ে যেমন পথিকেরা অনেক শান্তি পায়, ছায়া পায়, আমরাও কিন্তু এই অনপ্যাসিভ নামক ছাতাটির তলায় এসে অনেক বেশি শান্তির বার্তা পেতে যাচ্ছি। আর আমরা সেটা উপভোগ করছি, প্রত্যেক দিন আমরা অনুভব করছি যে আগামী দিন আমরা কি হতে যাব। দেখুন, মিলিয়নিয়ার, বিলিয়নিয়ার আর ট্রিলিয়নিয়ার এটাই বড় কথা না, বড় কথা হচ্ছে এটাই আমরা হিউম্যানিটির দিকে নজর দিতে পারবো, নিজেদেরকে অ্যাজ এ হিউম্যান আমরা প্রমাণ করতে পারবো, এবং আগামী দিনে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে আমাদের সাথে আপলিফট করতে পারবো। এই যে ভেতরে চিন্তা ভাবনা, শুধু বিশেষ করে মিস্টার ওয়ান অ্যান্ড অনলি মিস্টার অ্যাশ মুফারে এই স্বপ্ন, এই চিন্তা ভাবনা আমার মধ্যে অন্তত গেঁথে দিয়েছেন, যার জন্য আমি ওনার ভীষণভাবে কথাতে অনুপ্রাণিত হই, এবং ওনার প্রত্যেকটা কথা আমাকে ভীষণ মোহিত করে এই কারণে যে আমি ভাবি যে ইনি কোথায় ছিলেন। এতদিন বাদে আমি এনার সন্ধান পেলাম, এতদিন বাদে ওনার টাচে এলাম। জীবনের অনেকটা দিন মোটামুটি কেটেছে, কিন্তু সেখানে কোনো স্বস্তির বার্তা ছিল না, সেখানে কোনো শান্তির বার্তা ছিল না। কিন্তু এখানে এমন একটা জায়গায় আমরা সবাই মিলে ঢুকে পড়েছি, সেখানে প্রত্যেকটা মুহূর্তে একটা পিস অফ মাইন্ড এর সংকেত আমরা পাচ্ছি, কারণ আগামী দিন সেই ইন্ডিকেশনই আমাদের সবার মধ্যে দিতে যাচ্ছে। তো আমাদের সবার একটা জিনিসই মাথায় রাখা উচিত, যে আমরা খুব ভালো গুড হ্যান্ডস এর মধ্যে আছি, একটা সেফ গার্ডের মধ্যে আছি। আমাদের জীবনটা কিন্তু অনেক সুন্দর, সুন্দর থেকে আগামী দিনে অনেক সুন্দরতম হতে যাচ্ছে। তো সেই জায়গাটার জন্য আমাদের সবাইকে পেশেন্সলি থাকতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে, এনগেজ থাকতে হবে। আর মিস্টার অ্যাশ মুফারের সঙ্গে, আমাদের অনপ্যাসিভের সঙ্গে একদম হ্যাশট্যাগ লাগিয়ে চলতে হবে, ব্যাস এইটুকুই আমাদের কর্ম। আগামী দিনে আমাদের যা ফাংশন আছে, আমরা এখন যা শিখছি, আগামী দিনে তাই আমরা শেখাবো সবাইকে। এই নিজের সাথে নিজেকে কমিট করুন এবং আগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে বদ্ধপরিকর করুন। তো আজকে দুপুরের শেয়ারিং এইটুকুই ছিল। থ্যাংক ইউ স্যার, ওভার টু ইউ, বলতে সুযোগ দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি সুন্দর আলোচনা করে গেলেন বড় বৃক্ষের মতন। থ্যাংক ইউ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ মিতালি চক্রবর্তী ম্যাম, সুন্দর উপস্থাপনা দিয়ে গেলেন। থ্যাংক ইউ, এইভাবেই সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। তো পার্টিসিপেট প্যানেলে সময়ের দিকে ধ্যান দিয়ে আমরা এগিয়ে চলবো। তো রতিন স্যার, আপনি অ্যাভেলেবেল আছেন স্যার? যদি অ্যাভেলেবেল থাকেন, মোস্ট ওয়েলকাম, আসুন। আপনি মাইকটা হ্যান্ড ওভার করছি, আপনি আসুন, মাইকটা নিয়ে আগের দিকে সুন্দরভাবে এগিয়ে চলুন। আমাদের সোমাশ্রী মল্লিক ম্যাম আছেন, যোগেশ্বরী মার্কম ম্যাম আছেন, সরিতা বস্ত্রকর ম্যাম আছেন,
প্রত্যেকেই ওয়েলকাম করুন এবং সুন্দরভাবে আজকে ইউনেস্টোর ওয়েবিনারটাকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। তো মোস্ট ওয়েলকাম জানাই, হ্যান্ড ওভার করছি মাইকটাকে। जो नो प्रॉब्लम। सरिता वस्त्रकर मैम, मोस्ट वेलकम मैम, आप आइए। सरिता जी, सरिता वस्त्रकर मैम जी, आप आइए। यस सरिता जी अवेलेबल हो तो आप आइए जी। सरिता जी मोस्ट वेलकम जी। यस मैम, सरिता मैम तो मोस्ट वेलकम। ऑन पैसिव द भारत इंटरनेशनल चैंपियन ग्रुप से बहुत बहुत थैंक यू। तो फाइनलिस्ट रोहिता मैम तो अवेलेबल हो तो आइएगा जी, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट पैनलिस्ट हम लोग देखते पा रहे हैं जोगेश्वरी मार्को मैम, मोस्ट वेलकम मैम, अवेलेबल हो तो मोस्ट वेलकम जोगेश्वरी मार्को मैम। यस তো নো প্রবলেম। তো আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্যার উপস্থিত আছেন, তো আমি ওনাকে ওয়েলকাম করব। বাবাচরণ নস্কর স্যার, মোস্ট ওয়েলকাম স্যার। ইয়েস, আমাকে যদি শুনতে পেয়ে থাকেন মোস্ট ওয়েলকাম। ইয়েস কন্টিনিউ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे मौका दिया है स्टेज में बोलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना है राज सर को एक एक शब्द बारीकी से मैंने सुना है, बहुत ही केयरफुली पेशेंटली मैंने सुना है। एंड उसके बाद मिताली मैम आए हैं, बहुत ही बढ़िया स्पीच देके गया है। एंड राज सर क्या बताऊं, अब कहीं जवाब नहीं है सर, यू आर नो डाउट ग्रेट। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस गर्मी में एक बारिश की जरूरत थी। कहीं ना कहीं सर की बात सुनकर ऐसे लग रहा है कि मानो कि मैं बारिश में हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल जो सर ने शेयरिंग रखा है, जो स्पीच दिया है, कहीं ना कहीं मोरल बूस्ट हाई होगा हमारी। और आने वाले समय में बिल्कुल इस तरह हम ऑन के साथ जुड़े रहेंगे और हर वेबिनार में जितना हो सके तो हम अटेंड करने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। और बिल्कुल जितना हो सके तो हम बैक हाउस पे जुड़े रहेंगे। और जो वेबिनार चल रहा है हमारे, और सर की भी एक वेबिनार चलते हैं, तो उस वेबिनार में जरूर हम अटेंड करेंगे। बहुत कुछ नॉलेज मिलता है हमें। पता नहीं था कि ब्लॉकचेन क्या है, पता नहीं था कि ये बैक ऑफिस ब्लॉग आता है या फिर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ये क्या है। मगर जरूर बहुत सारी इंटरनेशनल लीडर्स आते हैं एंड जो स्पीच देके जाता है, कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत ही आभारी हूँ सर के कि आपने जिस तरह से बताया, एक एक शब्द को जिस तरह से बताया है एंड जिस तरह से नॉलेज देखे, एक शब्द भी आपने नहीं छोड़ा है, चाहे वो फिल्मी डायलॉग हो, चाहे वो अपने ऑन एस सर के बारे में हो, या फिर ऑन पसिव के फ्यूचर ऑफ इंटरनेट के बारे में हो, या फिर आने वाले समय में क्या होने वाला है, या फिर दूसरे कंपनी में क्या क्या सोचते हैं हमारे बारे में, या फिर अपने एप्पल के बारे में भी कहा है जो सुनामी आने वाला है। बिल्कुल। और अपने ये भी कहा है कि आईफोन स्ट्रेटेजी, फिर उसके बाद आपने नोकिया के बारे में कहा है। नोकिया फोन जो बाजार में अभी अवेलेबल है, मगर उनका बाजार बहुत डाउन है। तो क्यों डाउन है ये भी बताया है। और हमारी जो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर जो कहते हैं कि हम बहुत ही पीछे जा रही है या फिर देर हो रही है, क्यों देर हो रहा है, ये सारी सवाल का जवाब ये सारी सवाल का जवाब आपने एक ही बार में दे दिया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझा दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और मुझे लगता है इस स्पीच सुनने के बाद कुछ सवाल नहीं है, क्योंकि सारी सवालों का जवाब, इवन इंक्लूडिंग 360 वेबिनार जो कल हुआ था, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि क्या हुआ था एंड आने वाले समय में क्या होने वाला है। हम मिलियनेयर बनेंगे, ट्रिलियनेयर बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, और किन किन तरीके से हमारे जो अर्निंग होने वाला है वो भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल कि अपने जो वैल्यूएबल टाइम है निकाल के अपने इस वेबिनार सर को सुना है, इस मंच पे आए हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, ऑन पसिव के साथ जुड़े रहिए, एस सर के साथ जुड़े रहिए। और ऑन पसिव की जो यात्रा है बहुत ही लंबी हो और हमारी जो फ्यूचर है बहुत ही सिक्योर है, क्योंकि हम एक प्राउड ऑन पेसिवियन है, प्राउड फाउंडिंग मेंबर है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू सुजीत पाल सर। থ্যাংক ইউ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বাবাচরণ নস্কর স্যার, খুব সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন। ইয়েস সরিতা জি, মোস্ট ওয়েলকাম জি। Yes, yes, sir.
यस Yes, एक्चुअली में continue, मेरी ma'am. माइक अनम्यूट नहीं हो रही थी, Yes, इसीलिए मैं continue, ma'am. मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचे। ओके, थैंक यू सो मच सुजीत पाल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे पहले तो हमारा ये जो मंच है तब भारत इंटरनेशनल चैंपियन ग्रुप को मैं नमन करती हूँ। और आज के जो हमारे होस्ट है, हमारे ग्रेट लीडर हमारे सुजीत पाल सर एंड संजू सर का मैं दिल से अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आई होप बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा। और इस मंच में मैं देख पा रही हूँ जितने भी हमारे उपस्थित हमारे ऑन पेशेंट फैमिली, मिताली चक्रवर्ती एंड मेरी सिस्टर योगेश्वरी मरकाम एंड इच एवरीथिंग। और आज के जो चीफ स्पीकर हमारे ग्रेट ऑनरेबल हमारे कैप्टन हेड मिस्टर राज दामोदर सर का मैं दिल से अभिनंदन स्वागत करती हूँ एंड गुड इवनिंग, नमस्ते एंड प्रणाम। क्योंकि वाकई में हम हमेशा से उनको सुनते आए हैं। किसी भी टॉपिक की रिगार्डिंग हो, किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, वन सेकेंड, ओके, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारे राज दामोदर सर जो बातें करते हैं, किसी भी एवरीथिंग एवरीथिंग किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो, वो जब बात को रखते हैं, 360 वेबिनार का अपडेट हो, किसी मोटिवेशनल बातें हो, किसी बिजनेस के रिगार्डिंग हो, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हो, माय गुडनेस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जिस तरीके से ऑन पेशी में इतनी गहराई है, क्योंकि जितने हम डीपली जाते जाएंगे तो जितनी हमको नॉलेज मिलती जा रही है। मैं हमारे कैप्टन है राज दामोदर सर के बारे में बताना चाहती हूँ। तो उतनी गहराई, उतनी नॉलेज हमारे कैप्टन है राज दामोदर सर के में है माय डियर फ्रेंड। ये रियल है, ये रियल है, क्योंकि हम उनको सुनते आए हैं। और उनकी जो बातें रहती है वो एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो रहता है उनका, वो रियल रहता है। जैसे ऑन पेशी रियल है, हर एक ऑन पेशी के एक एक एप्लीकेशन रियल है, ऑन पेशी एक रियल बिजनेस है, इंटर ऑफ फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। वैसे हमारे राजदर सर का जो बातें रहता है वो रियल रहता है। तो आज का जो उनका सेटिंग था, उनकी प्रेजेंटेशन थी सुपर रॉकिंग फंटास्टिक ऑसम ऑसम। थैंक यू सो मच मिस्टर राज दामोदर सर। जब भी हम देखते हैं आपका स्पीच, आप किसी पैनल में चीफ स्पीकर हो, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आपका उसमें स्पीच, आपकी बातों को सुने। बट थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है इशूज, क्योंकि उस तभी हम नहीं आ पाते हैं। लेकिन हम हमेशा चाहते हैं कि 24 आवर्स से आपकी बातों को सुने। तो थैंक यू सो मच। और एक बात आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आप अभी जैसे सभी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यूज करते हैं, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ओके, लोगों को क्या लगता है, अगर वो फेसबुक चला रहे हैं तो या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हैं या ट्विटर चला रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन जो ये चल रही है। जी सर, कुछ बोल रहे थे क्या सुजीत पाल सर? सर आप कुछ बोल रहे थे क्या? No, ma'am. Continue, ma'am. Thank you. ओह 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 सॉरी। तो मैं वही कह रही थी कि हम जितने भी लोग, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, ओके, जितने भी ये एप्लीकेशन है, गूगल, ये जितने भी एप्लीकेशन है वो चला रहे हैं, तो क्या लगता है लोगों को क्या लगता है कि हम क्या बोलते हैं, हम बेनिफिट ले रहे हैं वहां से, सोशल मीडिया से? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या लगता है हम फ्री में यूज कर रहे हैं? नहीं, हमारी छोटी छोटी जो हम यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जितने भी सोशल मीडिया में हम टाइम स्पेंड करते हैं, आप लोगों को पता है, जानते हैं आप लोग इस चीज को, कि जो छोटी छोटी चीज जो हम टाइम स्पेंड करते हैं, कितना बड़ा अर्न करता है। अगर हम फेसबुक में जा रहे हैं, उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो फेसबुक का जो ऑनर है वो
अब हमारे चाहे गूगल का हो, गूगल का ऑनर जानते हैं, सुंदर पिचाई हर एक का अलग अलग ऑनर है। तो हमारा जितना भी वर्ल्ड लेवल का जितना भी एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू हम करते हैं, तो वो अगला व्यक्ति इनकम करता है। तो आप उस चीज का, मेरा कहने का मतलब ये है, राज सर वही चीज हम लोग की बताने की कोशिश कर रहे थे कि ऑन पेसी के बारे में वही चीज बताने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि सबसे पहले तो हम कंपनी के फाउंडिंग मेंबर हैं, हम कंपनी के बीटा टेस्टिंग है, सारे चीज हम कंपनी के हैं, ऑनर भी हम हैं, हम ये माने, क्योंकि हम सभी एक फैमिली है और ये हमारी खुद की कंपनी है। तो हमको ये समझना होगा कि ऑन पेसी में जो अभी एक्सटेंशन हो रहा, बहुत लोग बहुत सारे जो सवाल जवाब करते हैं, ओके, बहुत सारे लोग जो किंतु परंतु कचरा जो भरा हुआ है ना, तो इतने जो है माइंड में निगेटिव थॉट मैं बोलूंगी, उसको निकाल फेंक दीजिए, निकाल फेंक दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग की लाइफ, हम सही जगह में है, लाइफ हम लोग का सक्सेसफुल है। हम क्या, पूरी जनरेशन जो है ना, अभी हमारे राज सर वही चीज बोल रहे थे, जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हमारी नहीं, हमारी पूरी जनरेशन की लाइफ सेफ हो चुकी है, सिक्योर हो चुकी है। तो बट बने रहिए, अपडेटेड रहिए। हमारे जो भी मेंटर आते हैं उन आते हैं, उस चीज को आप अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो नोट डाउन जरूर करिए, क्योंकि कब किसके माध्यम से क्या सीखने को मिल जाए हम ये कह नहीं सकते। हम ये मैं कह सकती हूँ कि अभी हम लर्निंग प्रोसेस में है। हम आईटी के तो स्टूडेंट नहीं है, बट हम सीख रहे हैं। आज आपका और हमारा ये जो टाइम दे रहे हैं, ये सीख रहे हैं, यही टाइम, यही सीख आगे चल के हम सभी का काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच सुजीत पाल सर, एंड सभी का मैं इस मंच में सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, एंड नमस्ते एंड प्रणाम। ओवर टू यू सुजीत पाल सर। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू मैम, जोगेश्वरी मार्को मैम और भी है। तो थैंक यू सरिता वस्त्रकर मैम, असंख्य असंख्य धन्यवाद। अनपैसिव द भारत इंटरनेशनल चैंपियन ग्रुप से आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। आप आया और अब बहुत सुंदर नॉलेज हम लोगों को देके गया, इसी तरह हम लोगों का नॉलेज देके जाएंगे। अनपैसिव द भारत इंटरनेशनल चैंपियन ग्रुप से आपको बहुत बहुत थैंक यू मैम, থ্যাংক ইউ। তো নেক্সট हम প্যানেলিস্ট में সময়ের দিকে ধ্যান দিয়ে আমরা এগিয়ে চলবো। আমাদের বিশিষ্ট ম্যামেরা উপস্থিত আছেন, আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থিত হয়েছেন। আমি ওয়েলকাম করব, মোস্ট ওয়েলকাম সোমাশ্রী মল্লিক ম্যাম, মোস্ট ওয়েলকাম ম্যাম। আপনি আসুন, আপনার সুন্দর উপস্থাপনা এবং নলেজ অনপ্যাসিভ দা ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে মোস্ট ওয়েলকাম সোমাশ্রী মল্লিক ম্যাম, সুস্বাগতম ম্যাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইয়েস, আমাকে ওখানে ওয়েলকাম জানানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই প্রত্যেককেই। তো গুড আফটারনুন অল প্যানেলিস্ট অ্যান্ড আমাদের রাজ দামোদর স্যার, অসংখ্য পরিমাণ ধন্যবাদ জানাই এবং প্রণাম প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই। আজকে এই যে সেশন চলছে, বা আমি অনেকটা লেটে ঢুকেছি, আমি অনেকদিন এখানে এন্ট্রি নিতে পারিনি, কারণ এন্ট্রি নিতাম, এই মিটিং প্যানেলটা আমার খুব ভালো লাগে, এখানে আলোচনাটা খুব পজিটিভ হয়, এবং এখানে আমার সমস্যার কারণে আমি এন্ট্রি নিতে পারি না। আজকে আমি এন্ট্রি নিতে পেরেছি, একটু টাইম ফাঁকা ছিল, তো যে কারণে আমি এন্ট্রি নিতে পেরেছি। আর আজকে স্যারের সঙ্গে আমার অলরেডি সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তো রাজ দামোদর স্যারকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং প্রণাম প্রীতি শুভেচ্ছা ভালোবাসা জানাই। স্যারের স্পিচ আমার খুব সুন্দর লাগে এবং এত সুন্দরভাবে উনি ডিসকাশন রাখেন, যেটা আমাদের প্রত্যেকের জন্য খুব একটা পজিটিভ ভাইব্রেশন, প্রত্যেকটা মানুষের শরীরে ক্রিয়েটিভিটি অলরেডি উনি জাগ্রত করে দেন। তো সত্যি যে আজকে এই যে ও কানেক্ট অন প্যাসিভ ইকোসিস্টেম ব্যাক অফিস অ্যাসমোফারে স্যার আমাদের 4 পিলার্স অন প্যাসিভ দাঁড়িয়ে আছে, আর স্যারের সৃষ্টি সেই অনপ্যাসিভের মূল ফাউন্ডিং মেম্বার্স আমরা একটা অংশীদারিত্ব লিড করছি, একটা পজিশন হোল্ড করে আছি। সেই জায়গা থেকে সত্যি আমাদের গ্রেট রেসপেক্টেড এবং গড গিফটেড পার্সন আমাদের অ্যাসমোফারে স্যারকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শতকোটি প্রণাম আমি জ্ঞাপন করি। আজকে দেখুন গ্রেট অ্যাস স্যার আমাদের কাছে, উনি রক অ্যাস স্যার, রক অনপ্যাসিভ রক অ্যাস স্যার। আজকে দেখুন মাস্টার অফ ইনফরমেশন টেকনোলজির রাজা হচ্ছেন আমাদের অ্যাসমোফারে স্যার। সেই জন্য কিন্তু মানে আমরা অ্যাস স্যারের জন্য কিন্তু আমরা গর্বিত, আমরা অ্যাস স্যারের ভিশনের জন্য গর্বিত, আমরা আপনার পরিবারের জন্য গর্বিত, আমরা আপনার অর্জনের জন্য গর্বিত, আমরা মানব জাতির জন্য আপনার উপহারের জন্য গর্বিত, আমরা আপনার ধরন এবং বড় হৃদয়ের জন্য গর্বিত, আমরা ক্যাটমো নিয়ে গর্বিত, আমরা গর্বিত নিষ্ক্রিয়, কারণ অনপ্যাসিভ আমাদের কাছে একটা নিষ্ক্রিয় প্রোডাক্ট। এটা কোনো দিন
তার ক্ষয় হবে না। এটা একদম মানে অক্ষয় অমর একটা কোম্পানি, যে কোম্পানি প্রত্যেকটা মানুষের মুখে যেমন অন্ন তুলে দেবে, তেমনি কিন্তু হিউম্যানিটি আপলিফটিং করাপশনকে কারেকশন করার জন্য একটা পজিশন অলরেডি অনপ্যাসিভ নিয়ে নিয়েছে। সেই জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর করে ক্লিয়ার করতে চাইছেন আমাদের এস মোফারে স্যার। তো দেখুন কারেন্ট সিনেটো, প্রেজেন্ট সিচুয়েশন, 360 আপডেট, এভরিথিংস অল কিন্তু একদম আমাদের কাছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে আসছে, এবং আমরা কিন্তু নিজেদের থট প্রসেস, পজিটিভ চিন্তা ভাবনাটাকে নিয়েই কিন্তু আছি। আজকে স্যার খুব সুন্দর করে ডিসকাশন রাখলেন। আমরা নোকিয়া কোম্পানির এককালীন মার্কেটিং দেখেছি, বা আমাদের নোকিয়া তখন কি হারে মার্কেটিং করেছে, আর এখন নোকিয়া কোথায়। এখন যে ধরুন কোম্পানিতে আমরা চলছি, সেই পজিশন যদি নোকিয়া যদি তাদের মন্তব্যটা সেই এক পজিশনেই রেখে দিয়েছিল, যে কারণে কিন্তু আজকে নোকিয়া একদম নিচস্থ পজিশনে দাঁড়িয়ে আছে। আজকে যদি আমরা ভাবি, দেখুন আমাদের যে থট প্রসেস, পৃথিবীতে সবকিছুই কিন্তু দ্বৈত বা ডুয়েল। যেমন দেখুন বাস্তবে ভালোর সাথে মন্দ থাকে, দিনের সাথে রাত হয়, এবং পজিটিভের সাথে নেগেটিভ। এবং যদি আমরা ভাবি যে নেগেটিভ বিষয়গুলো যদি সরিয়ে দেওয়া এবং আমাদের হাতে, সেটা কিন্তু নেই। যেটা আমাদের হাতে আছে না, যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রিয়াকশন, বা অর্থাৎ কোনো একটা নেগেটিভ ঘটনা ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া কতটা আমরা নিজেদের মধ্যে এফেক্ট দেব, সেটা কিন্তু আমরা ধরে রাখার ক্ষমতাটা আমরা রাখতে পারি, বা সেটা কিন্তু আমরা ভেবে চলতে পারি। দেখুন পৃথিবীতে মানে মানুষের হাতে কিছুই নেই। কোনো একজন মানুষ মানে আপনাকে আজে বাজে হয়তো কোনো কিছু কথা বললো, সেটা যদি আমি মাইন্ড নিয়ে বসে থাকি বা ধরে বসে থাকি, তাহলে কিন্তু আমি জীবনে কখনোই কিছু উন্নতি করতে পারবো না। সেই কথাটা কিন্তু আমাকে এফেক্ট করতে হবে, তার ফলস্বরূপ কিন্তু আমি আমার সাফল্যতার দিকে এগিয়ে যেতে পারবো। আজকে সেই রকমই স্যার কিন্তু অনেক বাধা অতিক্রম করে কিন্তু আজকে কোম্পানিকে দাঁড় করিয়েছে, এত সুন্দর একটা পজিশনে দাঁড় করিয়েছে না, যে পজিশনটা মানুষ কখনোই কিন্তু কোনোভাবেই কেউ ভেঙে চুরে দিতে পারবে না, কারণ একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া। উনি প্রত্যেকটা মুহূর্তে বলেন যে উনি ডু অর ডাই, করবো অথবা মরবো। উনি করবেন অথবা মরবেন, কিন্তু অনপাসিভ একটা এমন জায়গায় উনি নিয়ে গেছেন। স্যার প্রত্যেকটা মুহূর্তে বলেন যে ঈশ্বর ছাড়া সেই কোম্পানিকে কোনো মতেই কিন্তু কেউ এখান থেকে মানে পৃথিবী থেকে কেউ সরিয়ে দিতে পারবে না, একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া। দেখুন আমরা সবসময় কি করি, যে আমাদের কাছে আমরা সবসময় কিন্তু কি নিজেরা ভাবতে থাকি যে আমরা যদি ধরুন যদি বলি যে পৃথিবীতে কোন শব্দটা হয়তো বিলীন হয়ে যাচ্ছে, বা আমরা নিজেদেরকে সেই বিলীন শব্দটার দিকে ধ্যান দিতে পারছি না, সেটা হচ্ছে ধৈর্য। আমরা কিন্তু ধৈর্য রাখতে পারছি না। আমাদের যত টাইম নিচ্ছে, যত সময় যাচ্ছে, তত কিন্তু আমরা অধৈর্য হয়ে পড়ছি। কেন পড়ছি, কেন যাব অধৈর্য হয়ে পড়ে? আমরা এখানে ধৈর্য নিয়েই আছি, ধৈর্য নিয়েই থাকবো, কারণ আমরা জানি এটা একদম এথিক্যাল একটা প্ল্যাটফর্ম। এখান থেকে প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট আমাদের কাছে এথিক্যাল। একে এই মানে এই যে প্ল্যাটফর্মটাকে সময় দিতে আমাদের কোনো কিন্তু কষ্ট হচ্ছে না, আমরা এখানে নিজেদের ধৈর্য সহকারে আছি। কিন্তু দেখুন আজকে বাস্তব জীবনে, যে আজকে ধরুন ইয়াং জেনারেশনের কাছে কিন্তু এটা সব থেকে একটা হতাশার মূল কারণ, যেটা মানে অভাবটা ওইখানেতে, যে আমরা ধৈর্যটা রাখতে পারছি না নিজেদের ভেতরে। হয়তো এক্সটেনশন হচ্ছে, তখন আবার হয়তো আমাদের মনটা ভেঙে গেল। কেন মনটা ভাঙবে, কিসের জন্য মনটা ভাঙবে? আমরা সেরকম করে গড়বো, অনপ্যাসিভের মতো করে নিজেদেরকে গড়ার চেষ্টা করব। আজকে এত সুন্দর করে তার পজিশনটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, এত সুন্দর করে কোম্পানিটাকে পৃথিবী ওয়ার্ল্ডের বুকে আনতে চাইছে। আমরা আমাদের নিজেদের ধৈর্যটার ফলে আমরা হারিয়ে যাবো এখান থেকে? কোনো মতেই কিন্তু না। সব সময়ের জন্য নিজেদের ধৈর্যটাকে এখানে গেইন করানোর চেষ্টা করব, যে যত ধরুন এখানে থাকবো, টিকে থাকবো। কোনো কাজ করতে গেলে বা কারোর কাছে যদি কথা বলতে গেলে আমরা কিন্তু খুব চটজলদি কাজটা হয়তো সেরে নিতে চাই, কিন্তু এটা কিন্তু একদম আমাদের পক্ষে করাটা উচিত নয়। যে কোনো কাজই যাই না কেন, আজকে দেখুন স্যার আজকে একটা টপিকস নিয়ে কথা বললেন, উনি কিন্তু টাইম নিয়ে, প্রপারলি টাইম নিয়ে মেনটেন করে কিন্তু টপিকসটা আমাদেরকে বোঝালেন। আমরা প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ভেতরে গেইন করতে পেরেছি। দেখুন উনি কিন্তু টাইম নিয়ে পুরোটা ডিসকাশন করেছেন আমাদেরকে। আজকে রাজদামোদর স্যার পুরোটা টাইম নিয়ে ডিসকাশন করেছেন, আমরাও কিন্তু সেই রকম ভাবে আমরা ধৈর্য নিয়ে কিন্তু অনপ্যাসিভের সঙ্গে টিকে থাকবো। দিস ইজ নো শর্টকাট। পৃথিবীতে শর্টকাট বলে কিছু হয় না, জীবনে শর্টকাট বলে কোনো কথা নেই। প্রত্যেকটা মানুষ যাকে বিলিয়নার, ট্রিলিয়নার, মিলিয়নার আছে, ওনারা কিন্তু নিজেদের প্রত্যেকটা মুহূর্তে ওনারা সাকসেসটা অর্জন করতে চেয়েছেন একটা পরিশ্রম দিয়ে, সংঘর্ষ করে, কঠোর থেকে কঠোরতম দিকে গিয়ে কিন্তু আজকে ওনাদের সাকসেসটাকে দেখতে পাওয়া গেছে। আজকে সেই রকমই আমরা যে জায়গাটা হোল্ড করছি, একটা এত বড় প্ল্যাটফর্ম, সেখানে একটা সৈনিকের জায়গা আমরা হোল্ড করছি। সেখানে তো আমাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে কিছু হচ্ছে না, তারপরও কিন্তু আমরা কঠোর পরিশ্রম করব। কারণ কি, আমরা আমাদের সেই রকম ভাবে মাইন্ডটাকে সেট আপ করে রেখেছি এখানে। তো
মানে একটা জিনিস সব থেকে বড় ব্যাপার যে দেখুন গুগল, অ্যামাজন, ডিসনি, মাইক্রোসফট, এই যে বড় বড় কোম্পানিগুলো এসেছে, অ্যাপেল, আজকে যিনি অ্যাপেলের মানে সিইও, তিনি কিন্তু প্রচুর স্ট্রাগল করে আজকে অ্যাপেল কোম্পানিকে দাঁড় করিয়েছেন। আজকে যিনি অ্যাপেল কোম্পানির সিইও, তিনি কিন্তু একটা টাইম উনি এক খুব মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির ছেলে ছিলেন এবং একজন দত্তক নিয়ে ওনাকে একজন দত্তক নিয়েছিলেন। আর উনি বলেছিলেন যে ওনার বাবা মায়ের পরিস্থিতিটা খুবই খারাপ থাকার কারণে উনি ওনার মা বাবা ওনাকে একজন স্কুল মানে প্রফেসরের একজন প্রফেসর এবং মানে ওনার ওয়াইফ এবং হাজবেন্ড দুজনে ওনাকে দত্তক নেন। নেওয়ার পরে ওনাকে বলেছিল যে আমার বাচ্চাকে কলেজে পড়াতে হবে এবং ওনাকে মানে মানুষের মতো মানুষ করতে হবে। ওনারা কিন্তু দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে আপনার বাচ্চাকে আমরা কলেজে পড়াবো এবং মানুষের মতো মানুষও করবো। আজকে দেখুন তখন কিন্তু যখন উনি আস্তে আস্তে নিজের ধাপটা এগিয়ে যায়, আজকে সেই জায়গা থেকে উনি কিন্তু আজকে অ্যাপেল কোম্পানির মালিক। কিন্তু উনি অনেকবার ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যম থেকে নিচে নেমে এসেছেন। উনি যেখানে কাজ করতেন সেখান থেকে ওনাকে ছেটে দেওয়া হয়েছিল, তারপরও কিন্তু উনি অ্যাপেল কোম্পানিতে যে আবার যুক্ত হয়, যে তার নিজের মূল মাথায় গিয়ে বসেন এবং তার কর্মকাণ্ড কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো দেখুন কোনো মানুষ কিন্তু কোনো ধৈর্য, পেশেন্স, বিশ্বাস এবং নিজেদের মনের ভেতরে যে পজিটিভ থিঙ্কিং, প্রত্যেকটা কিন্তু জায়গা কিন্তু সমানভাবে রাখতে হবে, তবে কিন্তু একটা মানুষ পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারবে। আর আজকে দেখুন এই যে এত বড় বড় যে চিন্তা ভাবনাগুলো চলছে, আজকে অ্যাসার দেখুন কোনো মানুষ কিন্তু কল্পনা শক্তি ছাড়া কিন্তু তার নিজের থিঙ্কিংটাকে পৃথিবীর বুকে আনতে পারে না। মানুষ কল্পনা শক্তি ছাড়া, মানুষ স্বপ্ন ছাড়া কিন্তু এই যে এত বড় কর্মকাণ্ড অ্যাসার চালাচ্ছেন, এটা কিন্তু সম্ভব নয়। উনি কিন্তু ওনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, ওনার উদ্ভাবনশীল থেকে কিন্তু উনি অনপ্যাসিভকে দেখেছেন। উনি জানেন যে ইন্টারনেটের মাধ্যম থেকে আজকে এটা একটা চতুর্থ বিপ্লব, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হচ্ছে আমাদের অনপ্যাসিভ, যেখান থেকে মানুষ নিজেদের হাহাকারের দিকটা ভুলে গিয়ে একটা সুন্দর ভবিষ্যৎ লিড করবে। আজকে এই যে অনপ্যাসিভ কোম্পানি আজকে এত তার আর প্রতিপত্তি বাড়ছে প্রত্যেকটা মুহূর্তে। আজকে দেখুন যে কোনো মুহূর্তে এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ব্যবসায়িক, শিল্পপতি এবং সঙ্গীতজ্ঞ যা কিছু মানে যে বড় বড় কবি বা লেখক মহান হতে পেরেছে না, তাদের কিন্তু পেছনে কিন্তু একটা কল্পনা শক্তি বা একটা সম্পূর্ণ বিকাশ করার জন্য কিন্তু মানুষ তার নিজের অর্জনটাকে বেছানোর জন্য কিন্তু ভেতরে ভেতরে কল্পনা শক্তি একটা ছিলই। পৃথিবীতে যা কিছু আবিষ্কার হয়েছে প্রত্যেকটা কিন্তু পাওয়ার অফ থিঙ্কিং, পজিটিভ চিন্তার দ্বারা কিন্তু সেটা আবিষ্কার হয়েছে। আজকে দেখুন মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, এরোপ্লেন, আপনার ট্রেন, সমস্ত কিছু মানুষের এই থট প্রসেস থেকে কিন্তু চিন্তা ভাবনা করি কিন্তু মানুষ সেই জায়গাটাকে তৈরি করতে পেরেছে। আজকে আমরা এপিজে আব্দুল কালামের নাম শুনেছি। উনি ওনার মানে সিদ্ধান্তটা এতটাই পরিষ্কারভাবে নিতেন। উনি যে কোনো কাজে হয়তো যখন অসফল হতেন, উনি চিন্তা করতেন যে ওনার অসফলতার কারণটা কি, উনি সেটাকে খুঁজে বার করতেন, তারপরে কিন্তু উনি আবারও এগিয়ে যেতেন। কারণ কি সেই রকম ভাবে আমাদেরকেও কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মে টিকে থাকতে হবে। আজকে এত ভাবে আমরা অ্যাওয়ারনেস পাই, থিঙ্কিং দ্বারা আমাদেরকে তৈরি করা হচ্ছে। নিজেদের যে যে কোনো ধরুন একটা জিনিসে যে একটা সুন্দর সুগন্ধি ফুলের আমরা অ্যাট্রাকশন পেয়েছি, সেই ফুলটাকে কেন আমরা নিজেরা ধরে রাখতে পারবো না, বা সেই ফুলটাকে কেন নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে সেটাকে সাজিয়ে রাখবো না? তাহলে আমার ঘরটা তো আরো গন্ধে মম করবে। তাহলে অনপ্যাসিভ হচ্ছে সেই রকম একটা সুগন্ধি ফুল। আমরা যদি এখানে অ্যাট্রাকটিভ থাকি বা অ্যাট্রাকশনটা এতটাই বাড়াতে পারি, অ্যাক্টিভিটিটা নিজেদের গ্রোথনেসটাকে হাই করার চেষ্টা করি, অনপ্যাসিভ প্রত্যেকটা মুহূর্তে সেই সফলতার দিকে আগিয়ে নিয়ে যাবে। আর এতটাই সাফল্যতা অর্জন করতে পারবো সেটা আমরা ভেবে প্রকাশ পাবো না। আজকে দেখুন আমরা ওয়েবসাইট, নিউ ওয়েবসাইট পেয়েছি, আর এত সুন্দর একটা মার্ভেলাস ওয়েবসাইট, যে ওয়েবসাইটে প্রত্যেকটা মুহূর্তে মানে আমাদের চেঞ্জেস আসছে। যে এতদিন আমরা অনপ্যাসিভের সঙ্গে যুক্ত আছি, একদিনও কিন্তু যে একটা ওয়েবসাইট দুবার কিন্তু আসেনি, প্রত্যেকটা সপ্তাহে মার্ভেলাস মার্ভেলাস ওয়েবসাইট আমরা ব্যবহার করছি। ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখুন আমরা ব্লগ দেখছি প্রত্যেকদিন কি কর্মকাণ্ড চলছে। আজকে ব্লক চেন, সাপ্লাই চেন, ক্লাউড কমিউটিং নিয়ে ব্যাপার নিয়ে চলছে, সেটাকে কিভাবে পুনরায় হোস্ট করা যায়, সেখানে রিফ্রেশ কিভাবে করা যায়, রিয়েক্ট কিভাবে করা যায়, সেখানে তার স্টেপ বাই স্টেপ ফলো করানো হচ্ছে আমাদেরকে। কিভাবে সেইখান থেকে আমরা ভিডিও লাইক করে, কমেন্ট করে আমরা ওন এটা আবার সেটাকে পোস্ট করতে পারি না, এভরিথিং ইজ কিভাবে এখান থেকে প্রসেসিং বাই প্রসেসিং চলা যায়, সেটা কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি। পার্ট বাই পার্ট ব্যবহার করতে চাইছি আমাদের অনপ্যাসিভ প্রত্যেকটা প্রোডাক্টকে। আজকে কেন এটা আমাদের কাছে মার্ভেলাস নয়, কেন বা আমাদের কাছে এটাতে পজিটিভটা থাকবো না? আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে পজিটিভ আছি। আজকে স্যারাদের বার্তায় আমরা পজিটিভ হয়ে যাচ্ছি, পজিটিভ হতে বাধ্য। অনপ্যাসিভ একটা এমন কোম্পানি, যে কোম্পানিতে থাকা মানে নিজেকে পজিটিভ ভাইব্রেশন প্রত্যেকটা মুহূর্তে ক্রিয়েট হবে। আর অ্যাসারের তো তুলনা হয় না, উনি এমন একজন পার্সন
যিনি প্রত্যেকটা মানুষের কাছে একজন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা আগ্রার তাজমহল শুনে এসেছি, দিল্লির আগ্রার তাজমহল আমাদের শাহজাহান তৈরি করে গিয়েছিলেন। তো সপ্তম আশ্চর্য বলা হয় আগ্রার তাজমহলকে। আর আমি বলবো আমাদের অষ্টম আশ্চর্য হচ্ছে আমাদের অনপ্রাসিভ অ্যাসমোফারে স্যারের তৈরি করা 8 হোল্ডার্স। এই প্ল্যাটফর্ম মানে প্রত্যেকটা মানুষকে রিফ্রেশ দেবে। থ্যাংক ইউ স্যার, আমাকে ওখানে প্ল্যাটফর্মে ডাকার জন্য। থ্যাংক ইউ রাজ দামোদর স্যারকে, অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ওনাকে। ওনার স্পিচ আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে। থ্যাংক ইউ সো মাচ রাজ দামোদর স্যার। ওভার টু ইউ সুজিত পাল স্যার। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই সোমাশ্রী মল্লিক ম্যামকে সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে অনপ্যাসিভ দ্য ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ একটু নলেজ নিয়ে এগিয়ে রাখলুম। থ্যাংক ইউ। তো আপনি অনেক আলোচনা করেছেন ও খুব সুন্দর মনোমুগ্ধকর আলোচনা করেছেন। এইভাবে প্রতিনিয়ত সাথে থাকবেন ম্যাম, পাশে থাকবেন ম্যাম। নলেজ একে অপরের পাশ পরিপূরক হয়ে এগিয়ে চলবো, নলেজ নিয়ে এগিয়ে রাখবো। অসংখ্য ধন্যবাদ সোমাশ্রী মল্লিক ম্যামকে। থ্যাংক ইউ ম্যাম। তো নেক্সট আমরা সময়ের দিকে ধ্যান রেখে এগিয়ে চলবো। অবশ্যই একটু দিকে খেয়াল রাখবো। আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট স্যার উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে, যাকে আমরা দেখতে পেরেছিলাম সামিরিজা স্যার, মোস্ট ওয়েলকাম। আপনি অ্যাভেলেবেল আছেন সামিরিজা স্যার? তো নো প্রবলেম। তো রথিন স্যার মোস্ট ওয়েলকাম, আপনি আসুন এবং আপনি এসে উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে আজকের এই ওয়েবিনারটাকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। মোস্ট ওয়েলকাম রথিন চক্রবর্তী স্যার, সুস্বাগতম। মোস্ট ওয়েলকাম রথিন চক্রবর্তী স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার সাউন্ড স্যার। আমি একটু নয়েজের মধ্যে রয়েছি স্যার, আপনি উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে কন্টিনিউ এগিয়ে নিয়ে চলুন। ওকে স্যার। অনপ্যাসিভ নমস্কার। নমস্কার ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ, অনারেবল হোস্ট, কো-হোস্ট, অল পার্টিসিপেন্ট, সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আমি রথিন চক্রবর্তী, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া। আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের মেন্টর মিস্টার রাজ দামোদর স্যারকে। তিনি সুন্দরভাবে আমাদের উপস্থাপনা করে গেছেন এবং আপডেট সম্বন্ধে আমাদেরকে অনেক কিছু জানানো এবং বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, এবং উপস্থিত সকলকেই আমি আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং প্রণাম জানাই। যাই হোক, আমাদের কোম্পানি, আমাদের স্যার যেভাবে আমাদের আপডেট দিয়েছিলেন, কোম্পানি তার প্রধান লক্ষ্যের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে এবং আগামীতে বড় কিছুর আসতে চলেছে বা পরিবর্তন আসতে চলেছে। অনপ্যাসিভ মানব জীবনের পরিবর্তন আনতে চলেছে, আমাদের মিস্টার অ্যাসমোফারে স্যার বলেছেন, এবং বাস্তব কিছু চমক দিতে আসতে চলেছে এবং এমন একটা কিছু আনতে চলেছে যা একটা পাখি যেমন উন্মুক্ত আকাশে তার মনের ইচ্ছা মতো উড়ে বেড়াতে পারে, ঠিক তেমন ভাবেই আমাদের সিইও মিস্টার অ্যাসমোফারে স্যার বলেছেন আপনার মনকে আপনি উড়িয়ে দিতে পারবেন, তেমন কিছু আগামীতে আসতে চলেছে। এবং প্রতিটা এবং সব কিছুই যা করা হচ্ছে বা আমরা যেটা করছি সমস্ত সবই সেটা ট্র্যাকে রয়েছে এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে সেগুলো আসতে চলেছে। এটি সম্মান, খ্যাতি এবং সম্মানপূর্বক অবিশ্বাস্য কিছু আসতে চলেছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য, এবং ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন এবং সেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে তিনি এগিয়ে নিয়ে যে তিনার প্রতিশ্রুতিকে রাখার তিনি অনুপ্রেরণা জাগিয়েছেন। বিশ্বের বেশিরভাগ কোম্পানি লোভী এবং সংবেদনশীলতার তেনাদের অভাব আছে এবং মানবতার জন্য বা মানবতার বিরুদ্ধে তেনারা আচরণ করেছেন। তাই মিস্টার অ্যাসমোফারে স্যার আমাদের বলেছেন মানবতা
নিয়েই আমি আসছি এবং সকল বিশ্ববাসীকে আমি মানবতার মাধ্যমে আমি দেখব এবং সমস্ত জগৎকে আমি পরিবর্তন করার চেষ্টা করব। এবং তিনি আরো বলেছেন যে বড় বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে এবং প্রতিটা মুহূর্তে সবকিছুই সেটা মানবতার উন্নতির জন্য তিনি করবেন এবং দুর্দান্ত সাফল্য উপভোগ করতে তিনি পারবেন, বা সমগ্র ফাউন্ডিং মেম্বার বা সমস্ত দেশবাসী একটা নতুন কিছু পেতে চলেছে যা একটা সমগ্র বিশ্ববাসীকে চমকে দেবে। এবং এইভাবেই তিনি বলেছেন এবং সমগ্র বিশ্ববাসী তেনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে যে তেমন কিছু একটা আসতে চলেছে, আমরাও আছি তেনার মুখের দিকে তাকিয়ে, এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর উন্নয়ন হবে। যাই হোক, সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। ওভার টু মিস্টার সুজিত বলছেন। থ্যাংক ইউ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই রতিন স্যার, খুব সুন্দর উপস্থাপনার মাধ্যম দিয়ে উপস্থাপনা রেখেছেন। থ্যাংক ইউ, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো সময়ের দিকে ধ্যান দিয়ে আমরা পার্টিসিপেট প্যানেলের অবশ্যই হ্যান্ড রাইজ করুন। হ্যান্ড রাইজের মাধ্যমে আজকের এই ওয়েবিনার এগিয়ে চলবো। আর সেই জায়গা থেকে আমরা অনেকটা সময় অতিবাহিত করে ফেলেছি, তো সেই জায়গা থেকে আমি হ্যান্ড রাইজ চাইবো। অবশ্যই আসুন, উপস্থাপনায় আসুন এবং নলেজ একে অপরের পরিপূরক হয়ে এগিয়ে চলবো। তো অনপ্যাসিভ ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপসে প্রত্যেকেই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। খুব সুন্দর মনোমুগ্ধকর আলোচনা চলছে এবং খুব সুন্দর উপস্থাপনা রেখে গেলেন প্রত্যেক স্যার ম্যাম। তো সেই জায়গা থেকে আমি শেষের দিকে চলে এসেছি। অবশ্যই হ্যান্ড রাইজ যেহেতু পাচ্ছি না, তো নো প্রবলেম। তো আমি ওয়েলকাম করে নেবো আজকের আমাদের गेस्ट स्पीकर मिस्टर राज दामोदर सर। आप आइए, आज एंड करके दे जाइए। मोस्ट वेलकम राज जी। वेलकम मिस्टर राज दामोदर सर, कैप्टन हेड मिस्टर राज दामोदर सर, वेलकम, सुस्वागतम। आप एंड कर दीजिए। मोस्ट वेलकम राज जी। यस, তো নো প্রবলেম, আমরা রাজ স্যারকে পাচ্ছি না। তো তো আমাদের মধ্যে বিশিষ্ট ম্যাম উপস্থিত আছেন, মিতালি চক্রবর্তী ম্যাম। আসুন, আপনি আমাদের এই ওয়েবিনারটাকে এন্ডের দিকে নিয়ে যাবেন। আসুন, মোস্ট ওয়েলকাম। আপনার হাত দিয়ে আমরা শেষ করব আজকের এই ওয়েবিনার। মোস্ট ওয়েলকাম মিতালি চক্রবর্তী ম্যাম। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। প্রতিদিনের মতো আমরা আজকেও অনেক আলাপ আলোচনা শুনলাম, আর আশা করছি আমরা নিজেদের জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুললাম এবং প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা অনপ্যাসিভ এবং মিস্টার অ্যাশ মুফারের সঙ্গে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছি একটা একটা স্টেপ ফেলে। তো আগামী দিনগুলোতেও আমরা একসাথে এইভাবে এগোতে থাকবো, সবাইকে সাথে করে নিয়ে। তো ততক্ষণের জন্য, যতক্ষণ আমাদের জীবনটা না থেমে যাচ্ছে, ততক্ষণ আমরা বিভিন্ন ওয়েবিনারের সঙ্গে আমাদের নিজেদের যুক্ত রাখবো এবং জ্ঞান বাড়াবো নিজেদের মধ্যে। তো আজকের জন্য আমাদের এই মঞ্চ বন্ধ হবার বা ক্লোজের দিকে আমরা নিয়ে যাব। তো সেই জন্য আমরা গর্বের সাথে সবাই বলবো, আমরা উই আর সো ইন ইট টু উইন ইট। থ্যাংক ইউ এভরিবডি। থ্যাংক ইউ। প্রত্যেকেই আমরা কোম্পানির ট্যাগলাইন জানি, উই আর সো ইন ইট টু উইন ইট বলবো। প্রতিনিয়ত আমরা এই ওয়েবিনারে ভারতীয় সময় 3:45 এবং বাংলাদেশ সময় 4:15-তে উপস্থিত থাকি। আমি প্রত্যেককেই ওয়েলকাম আগামীকালের জন্য জানাবো এবং প্রত্যেকে সুস্বাস্থ্য কামনা করব। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, প্রতিনিয়ত অনপ্যাসিভ ভারত ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন গ্রুপের সাথে থাকুন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ অল।